डॉक्टर शबाना नूर प्रेजेंट करेंगी। मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है ये टाइम टेस्टेड है और इस टॉपिक की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि इसके वक्त मतलब काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने जो टॉपिक चूज किया है यकीनन काबिल तारीफ है और इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। और क्योंकि यूनानी में खासतौर से इसकी ज़रूरत है क्योंकि ये जो है प्रेशर है हमारे मिनिस्ट्री की तरफ से और ये हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी कि अगर इस पर कुछ काम हो सकता है तो किया जाए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये मौका है, ये एक ऐसा मतलब जो है प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग इस चीज़ को समझने के लिए इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या कर सकते हैं, इस पे बहरहाल पूरी डिटेल जो है वो डॉक्टर शबाना नूर जो डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी से है वो प्रेजेंट करेंगी। मैं दावत देता हूँ डॉक्टर शबाना नूर को कि वो आए और अपना प्रेजेंटेशन पेश करें। Before starting, I would like that kindly all of you either silent your phone or keep it on vibration mode. It's like unethical advice during this. Respected principal sir, medical superintendent, faculties, teachers, and all the PG scholars. A very good afternoon to all of you present here. I am Dr. Shabana Noor, Department of Pathology, Government Tibbi College and Hospital. And the topic for today's presentation is COVID-19. And specifically today we will be talking about its pathogenesis. Now, what actually pathogenesis is? Pathogenesis, it comes from the word genesis, means origination or formation. Pathos is a Greek term which means to suffer, suffering, or disease. So it is actually the mode of production, origin, and change of events that leads to the development of a disease. Pathogenesis is concerned with the study of nature and cause of the diseases, and it underpins every aspect of medicine from diagnostic testing and monitoring of chronic diseases to cutting-edge genetic research and blood transfusion technologies. So basically, pathology is integral to the diagnosis of every disease, and it plays a vital role across all facets of medicine throughout our lives, from preconception to post-mortem. In fact, it has been said that medicine is pathology. Now coming to COVID-19. Coronavirus 2019, it's a contagious disease and it is caused by severe acute respiratory syndrome, coronavirus 2. And the disease has since spread worldwide, leading to the ongoing pandemic. So before even diving into the pathogenesis, let's see about the epidemiology. What epidemic is? Epidemic is a sudden outbreak of a disease in certain geographical area. Whereas pandemic is an outbreak of a disease that occurs over a wide geographical area. It can be multiple countries or continents and typically affects a significant proportion of the population. So basically we can say pandemic is a global epidemic. Now coming to the counterpart of epidemiology in Unani. In Unani, there are various terminologies that can be related to epidemic and pandemic. The first one is Amraze Wafida. Amraze Wafida is a disease occurring due to abnormal air, having severe symptoms, but not leading to mortality. इस केस में mortality नहीं होता, symptoms बहुत ज़्यादा severe रहते हैं, abnormal air रहेगा, but it will not lead to mortality. You can even relate it with the communicable and non-communicable diseases. Sorry, communicable diseases. But if this disease causes fatality, अगर उसमें मौत हो रही है, then the terminology changes. It is known as mautan. Mautan is an Arabic word and it is from the word maut. So if fatality occurs, then we can say it as mautan. Another term is amraze baladia. Balad means cities and towns. So prevalence of a particular disease in certain geographical location or places is and absence of the same in other places. So this term, Amraze Baladia, can be correlated to the epidemic because both the definitions are almost saying the same thing, that outbreak of a disease in certain geographical location. So Amraze Baladia can be slightly correlated to the epidemic.
Wabai umumi. In Unani classical literature, the term that has been constantly used in regard to epidemic is Wabai umumi. So the term epidemic referred as Wabai umumi in Unani medicine. And since there is no direct description of microbes before the advent of microscope, Unani physicians still were well acquainted with the concept of microbes, which they referred as Ajsame Khabisa or noxious substances, and according to which these noxious substances were transferred from a diseased to healthy person, either by direct contact through air or water, are responsible for resulting into a disease. And this is exactly the definition or symptoms that we are seeing in COVID-19 today. The virus, coronavirus, it does spread from a disease to a healthy person through air. Now, how this was the relation of epidemiology in relation to Unani. Now coming to the COVID relation, how COVID is related to Unani. So basically the exact term for this COVID-19, it is not mentioned in any Unani literature, but it can be explained under the heading of Ummai Wabaiya, that is epidemic fever, and Nazlai Wabaiya, that is epidemic influenza. And how it is related, let's have a look at it. Nazlai Wabaiya. The Persian scholar Nazimuddin Samarkandi has kindly stated in his treatise Al-Asbab Alamat about the epidemic influenza, wherein he has mentioned that there are certain symptoms that occurs in Nazlai Wabaiya, that fever, sneezing, sore throat, nasal irritation, malaise, and weakness. Samarkandi even further stated that these patients may also suffer from cough, diarrhea, and sometimes delirium, and disease progression of pleurisy or pneumonia may worsen the prognosis. If we closely look what Nazimuddin Samarkandi has said about Nazlai Wabaiya and its symptoms, it is exactly the symptoms that we are today seeing in patients of coronavirus and COVID. Fever is also there, sneezing, sore throat, and in severe conditions when the severity increases in COVID patients, patient goes into delirium, coma, pleurisy, and pneumonia. Now coming to the relation of COVID-19 with Ummai Wabaiya. What is Ummai Wabaiya actually? Ummai Wabaiya is a devastating type of fever which occurs due to unavoidable changes in air, qualitatively and quantitatively. Qualitatively and quantitatively here refers to the kamiyat and kaifiyat that results in the changes of air. And as a result, air becomes impure, and finally it gives rise to abnormal temperament of ruh, that is sue mizaj of ruh, which subsequently results into morbidity and mortality. And as fresh and pure air is essential for health, any contamination in the air may affect the health of any person, and it depends upon the intensity of contamination. Here, intensity of contamination represents the quantitatively changes in the air. How much amount of contamination, like how much amount of microbes, या air में कितनी खराबी है, कितनी % microbes है, वो determine करेगा symptoms की जो patient पे होगा और उसकी effectivity पे. Even Abu Sahel Masih has said that usually the external air is more healthier than internal air. This sentence is in reference to normal environment. अगर कोई disease नहीं है, healthy environment है, then this is he has said it correctly that usually the external air is more healthier than internal air. इसीलिए बोला जाता है कि आप सुबह उठें, बाहर मॉर्निंग वॉक पे जाएं, टेक फ्रेश एयर. क्यों? ताकि ये हमारी रेस्पिरेशन को अच्छा करता है. दिस इज इन नॉर्मल सिचुएशन, बट इन एपिडेमिक इट इज वाइस वर्सा. इन एपिडेमिक द इंटरनल एयर इज मच मोर सेफर एंड हेल्थियर दैन द एक्सटर्नल एयर. और यही रीजन है कि गवर्नमेंट आजकल जो जितने भी प्रिकॉशन मेजर्स बता रहे हैं उसमें दे आर क्लियरली सेइंग कि आपको बाहर नहीं जाना, यू हैव टू अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस, क्राउड में नहीं रहना, अंदर रहना है, क्योंकि अंदर की जो इंटरनल हवा है दैट इज मच मोर सेफर एंड हेल्थियर इन कंपैरिजन टू द आउटर एयर. एंड हुमाय वबाया कैन आल्सो बी रिलेटेड टू गैर तबई एहतबास. गैर तबई एहतबास, like Rabban Tabri has already said that people who have excess waste material in their body are usually affected with humay wabaya. Now the question arises, how does ghair tabai ehtabas results into humma, fever? When there is ghair tabai ehtabas, there is excess waste material accumulation in body. It becomes a breeding ground for every type of microbes, be it virus, be it bacteria, be it any microbe, and that breeding leads to infection. और हमारी बॉडी का जो रिजल्ट, जो रिस्पॉन्स होता है इन्फेक्शन का, दैट इज इन फेस ऑफ फीवर. फीवर के उसमें वो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है कि हाँ इन्फेक्शन है. सो वी कैन क्लियरली से है कि गैर तबई एहतबास लीड्स टू हुमाय वबाया. So this was a basic gist of epidemiology relation with Unani terminologies and COVID-19 relation with symptoms and signs according to Ummai Wabaiya and Nazla Wabaiya. Now coming to the coronavirus.
The image that you are seeing there, the first one, this is the microscopic image of coronavirus. और जो नीचे आप image देखते हैं, that is the telescopic image of the sun. और जो sides में जो white वाली है, वो sun की rays हैं, जो telescopically universe में नजर आ रही हैं. So you can correlate the halo around the sun and the coronavirus. They are equally related. So the name coronavirus is derived from the Latin word corona, that means crown, because it's spike proteins which protrude outside of the virion, resembling a royal crown of the sun's corona when viewed using an electron microscope. Virion कहते हैं वायरस जब अपनी इन्फेक्टिव स्टेज में होता है तब उसे वेरिएंट कहेंगे. अगर वायरस बाहर है, अगर वो होस्ट में नहीं, वायरस इज अ पैरासाइट, जब तक वो किसी होस्ट सेल के अंदर नहीं जाएगा वो इनएक्टिव स्टेज में रहता है. बट इन इट्स इन्फेक्शियस स्टेज उसे हम वेरिएंट कहते हैं. Now coming to the nomenclature, how it got its name COVID-19 या पहले क्या नाम था ये जो भी है. Viruses are named based on their genetic structure to facilitate the development of diagnostic tests, vaccines, and medicines. International Committee of Taxonomy of Virus, that is ICTV, this has declared the name of this new virus as 2019 coronavirus, 2019 nCoV. This organization, the International Committee on Taxonomy of Virus, this authorizes and organizes the taxonomic classification and nomenclature of viruses. And it has developed a universal taxonomic scheme for viruses, thus has the means to appropriately describe, name, and classify every virus that affects the living organism. And it has announced the severe acute respiratory syndrome on 11th February 2020. Sidewise, subsequently, World Health Organization named it as Coronavirus Disease 2019. This COVID is an abbreviated form. CO stands for corona, VI represents virus, D for disease, and since it was identified in 2019, hence it has got its name COVID-19. And after being broadcasted as a public health emergency in January 30, 2020, COVID-19 was subsequently declared a pandemic on 11th March 2020 by the World Health Organization. Basically, when we talk about nomenclature, initially जब भी कोई नाम होता है तो उसके country के origin पे नाम रखा जाता है. जैसे for example, the Spanish flu in 1919, it originated in Spain. MERS, Middle East Respiratory Syndrome, that originated in Arabian Peninsula in 2012. उसके basis पे उसका नाम रखा गया. इसको भी initially जब अभी diagnose भी नहीं हुआ था, identify भी नहीं हुआ था कि ये atypical pneumonia कौन सा virus है. It was known as Wuhan virus or Wuhan pneumonia. Now coming to the structure of the protein, the virus. The red structure that you are seeing, it is the spike protein. This virus is basically composed of different types of proteins. On its basis, they have different structures and variants. This red one is known as the spike protein. And this is giving the appearance of the protrusion of the sun's corona. The M protein is the membrane protein and E protein is the envelope protein. This is just the outside structure. And you have to know and remember the structure of the virus to know how it infects, how it acts, and or comes inside our body. First human coronaviruses, they were first identified in mid-1960s. And this coronavirus, this SARS coronavirus 2, is the third coronavirus that has caused severe diseases in humans to spread globally in the past 2 decades. The first coronavirus that caused severe disease was severe acute respiratory syndrome, SARS, which coincidentally also originated in China in 2002 in the city Foshan. And it caused the global pandemic of SARS coronavirus in the time period of 2002 and 2003. The ICTV had initially named this virus, our COVID virus, as SARS coronavirus 2. And it has still the name, but to reduce the social stigma, this name was given so that people does not haphazardly behave कि वो SARS था, बहुत तबाही हो गई थी. अगर अभी भी वही नाम रहता तो सारी की सारी पब्लिक मेंटली साइकोलॉजिकली उससे रिलेट करते कि उस वक्त इतनी तबाही हुई थी तो अभी भी वही रहेगा. इस वजह से इसका नाम कोविड रख दिया गया to make it sound less dangerous. And the second coronavirus caused Middle East Respiratory Syndrome, which originated from Arabian Peninsula in 2012. अब ये तीनों के तीनों viruses जो हैं, ये genetically कैसे related हैं? The first image that is presented on your screen, this is the microscopic image of SARS coronavirus 1 that caused the pandemic in 2002. Second one is the current COVID-19 microscopic image. See, you can easily correlate by genetically also that they have something in common. And this last picture is of Middle East Respiratory Syndrome coronavirus.
The last picture, the red one, it is in the infective stage. The variants I already told you, that when the virus comes in infective state, it is known as the variants. So if you see the picture, you can easily correlate that they are genetically somewhere similar, but still different. I'll tell you how. But before that, coming to the classification of coronavirus. Coronavirus, it belongs to the Coronaviridae family. Orthocoronaviridae being its subfamily, and Nidoviridae is the order. This subfamily is further divided into 4 genera, and this is based on the difference of protein structure. That is why I'm telling you that virus is made of proteins, different kinds of protein, और उसके structure पे किसमें कौन सा protein है, उसका structure कैसा है, उसके basis पे इसकी classification अलग हो जाती है. Alpha coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, and delta coronavirus. This classification is the 4 genera. Alpha, beta, gamma, delta. इस बलून के अंदर जितने भी हैं वो सारे के सारे कोरोना वायरस की स्पीशीज हैं that affects humans, mammals, birds, whales, etc. Out of these also, only 7 human coronaviruses are responsible for infecting the humans. इतने सारे viruses की strains हैं, subspecies हैं, species हैं, but अभी currently सिर्फ 7 हैं जिनकी study पता है कि ये हमें human को affect करते हैं. उसमें से भी ये दोनों they belong to alpha and beta category. जो ब्लैक वाले आपको जो दिख रहे हैं, ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1, OC43, अल्फा में 229B, NL63, ये जो सिम्टम्स कॉज करते हैं दे आर वेरी माइल्ड, लाइक फ्लू, फीवर, हेडेक, कफ, ये वाले सिम्टम्स होंगे एंड दैट माइट बी इवन गॉन विदाउट इवन टेकिंग मेडिसिन. जो रेड से हाईलाइटेड है, द बीटा कोरोना वायरसेस, ह्यूमन मर्स, सार्स एंड कोरोना 1 एंड सार्स कोरोना 3, दीज 3 आर हाईली पैथोजेनिक. यही 3 है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे अभी सिम्टम्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, सिवियरिटी हो रही है और फेटालिटी रेट बढ़ा हुआ है. Now coming to the variants of coronavirus, ये सब species की बात है और ये वाली जो description है इसका, variants of coronavirus, this has been recently declared by the World Health Organization, and viruses are categorized based on their specificity. Like variant of concern, उसकी कुछ category, कुछ points हैं जिसके अगर वो fulfill कर रहा है virus, then it comes in this criteria: various variants of interest and variant of high concern. अब जितने भी वायरस के स्ट्रेन अभी स्टडी कर रहे हैं, दे आर कैटेगराइजिंग इट कंसर्न, इंटरेस्ट एंड हाई कॉन्सिक्वेंसेस. अब कंसर्न में आने के लिए उसमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए. अगर उसकी ट्रांसमिशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या इन्फेक्टिविटी बढ़ गई है, विरुलेंस एक्टिविटी बढ़ गई है, या फिर जो भी हमने अभी डायग्नोस्टिक टेस्ट निकाले हैं या वैक्सीन हम यूज कर रहे हैं या ड्रग थेरेपी जो यूज कर रहे हैं उसकी इफेक्टिविटी कम हो गई है, उस वायरस को हम इस कैटेगरी में डाल देते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न. वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नाम से पता चल रहा है कंसर्न, हाईली पैथोजेनिक एंड डेंजरस. वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट में क्या है, जब वो स्टडी करते हैं, when they study they see about the genetic changes that can be predicted to know about its transmissibility and community transmission. And variant of high consequence, it's a very high consequence, has clear evidence that preventive measures or medical countermeasures, they have significantly reduced effectiveness relative to previously circulating variants. मतलब ये कि हाई कॉन्सिक्वेंसेज में जितने भी हम अभी वैक्सीन हम यूज कर रहे हैं, जितने भी वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग, या ड्रग थेरेपी या डायग्नोस्टिक टेस्ट इसको डिटेक्ट करने के लिए, दे डू नॉट अफेक्ट दिस वेरिएंट. अगर इस कैटेगरी में हाई कॉन्सिक्वेंस के वेरिएंट्स हैं तो उस पर जो अभी फिलहाल करंट जितना भी हमारे पास डेटा है या जो भी है वो उस पर इनइफेक्टिव है. अगर ऐसा कोई वायरस आ गया तो मतलब वी आर सीरियसली नॉट लकी. नाउ कमिंग टू द वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न. अब इसमें वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न में कितने सारे हैं? 4 मेन हैं, मेजर हैं, जो हमने अभी बात करी थी: अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा. दे आर द वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न. अल्फा वाज फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड इन यूनाइटेड किंगडम इन सितंबर 2020, बीटा इन साउथ अफ्रीका, और दोनों की डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियली जो थी वो 18 दिसंबर 2020 में हो गई थी. गामा वाज डिस्कवर्ड आइडेंटिफाइड फर्स्ट इन ब्राजील इन नवंबर 2020 on 11 January 2021. Now coming to the Delta virus, the most hot and burning variant of coronavirus currently. Delta virus, as we already know that it is discovered in India because initially it was also known as Indian virus, some sort of ऐसा नाम भी बोला गया था इसका. Delta virus was initially in the category of interest, variant of interest में था ये 4 April 2021 तक. लेकिन जैसे ही इसकी वेरिएंट्स चेंज हुए, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ी, इसका इन्फेक्शन रेट बढ़ गया, और जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हम कर रहे थे उसकी एफिकेसी इस वेरिएंट को लेके कम हो गई डेल्टा को. इट वाज शिफ्टेड
to variant of concern, and it is recently shifted even in May 2021. Now coming to the variants of interest. Variant of interest जैसे वो अल्फा बीटा गामा, इसमें भी है ईटा आयोटा कप्पा लैम्डा, ये सारे के सारे वेरिएंट्स हैं ऑफ इंटरेस्ट जिसके अंदर जेनेटिक चेंजेस के बारे में वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं और कम्युनिटी ट्रांसमिशन का क्या रोल है वो भी इसमें पढ़ रहे हैं, बट इट इज नॉट एज डेंजरस इन कंपैरिजन टू वेरिएंट ऑफ कंसर्न. ईटा है मल्टीपल कंट्रीज में आया था, आईओटी जो आयोटा दैट इज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कप्पा अगेन बीइंग इन इंडिया एंड लैम्डा पीरो. सो वी कैन से अगर इनमें से भी जो ईटा आयोटा कप्पा लैम्डा ये वेरिएंट्स है, अगर इनमें से भी किसी की आगे जाके ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ जाए, विरुलेंस बढ़ जाए, या जो हम डायग्नोस्टिक्स टेस्ट कर रहे हैं उसके इफेक्टिव कम हो जाए, ये जाके वापस से शिफ्ट होके दे विल बी अंडर द कैटेगरी ऑफ वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न. नाउ कमिंग टू द वेरिएंट्स ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंसेस, जहां पे कोई भी लैब टेस्ट काम नहीं करेगा उस वेरिएंट पे, ना ही कोई वैक्सीन काम करेगी, ना ही उसका कोई ड्रग थेरेपी है. ऐसे वेरिएंट्स कौन है? WHO ने, लकीली ऐसा भी कोई वेरिएंट है नहीं, अभी आया नहीं है, इस कैटेगरी में नहीं है. करंटली देयर आर नो SARS कोरोना वायरस वेरिएंट्स दैट राइज टू दिस लेवल ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंसेस, एंड वी आर लकी दैट वी डू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ वेरिएंट्स एट प्रेजेंट. सो दिस वाज अबाउट द क्लासिफिकेशन, वेरिएंट्स, स्पीशीज एंड सब स्पीशीज. नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कोरोना वायरस. स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर स्ट्रक्चर याद रहेगा तो पैथोजेनेसिस आप लोगों को इजीली समझ आएगी. ये रेड वाला पार्ट जो है दैट इज द स्पाइक प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन, एनवेलप प्रोटीन, और जो बीच में जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है ये इसका जीनोमिक मटेरियल है, RNA, एंड दैट इज एनक्लोज्ड इनसाइड द एन प्रोटीन, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन. They are very minute in size. If we talk about its structure, 65 to 125 nanometer. It is envelope. You can see जो RNA है उसके ऊपर में एक मेम्ब्रेन है न्यूक्लियोकैप्सिड की. इसका मतलब ये एनवेलप है. पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. ये ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है. ये किस लिए? क्योंकि पॉजिटिव सेंस दो तरह के RNA मटेरियल्स होते हैं, पॉजिटिव सेंस होते हैं और एक नेगेटिव सेंस होते हैं. RNA जो COVID-19 इफेक्ट कर रहा है, दे हैव पॉजिटिव सेंस RNA, मतलब इसका प्रोटीन में कन्वर्ट होना, ट्रांसक्रिप्शन जो होना है वो बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा, इसे कोई भी अलग से मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द फोर्थ स्ट्रक्चर, स्पाइक, मेम्ब्रेन, एनवेलप. ये तीन जो है स्पाइक, मेम्ब्रेन, एनवेलप, ये बाहर की कोटिंग पे है सिर्फ. जो सिर्फ लास्ट वाला है न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन, ये RNA मटेरियल को स्कैफोल्ड करता है. नाउ कमिंग अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ वायरस विद होस्ट. सेल्यूलर लेवल पे पैथोजेनिकली लाइफ साइकिल हमारे होस्ट सेल यहाँ पे हमारी ह्यूमन बॉडी के सेल्स हैं, ये कैसे इन्फेक्ट करेगा, क्या है ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर जो दिख रहा है वो कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है, और जो ये सेल मेम्ब्रेन नजर आ रही है ये हमारा होस्ट सेल मेम्ब्रेन है. इसमें सिर्फ आप बस एक कंक्लूजन के लिए है कि वो कैसे रिसेप्टर पे आ रहा है, फिर बाइंड हो रहा है, पेनिट्रेट हो रहा है, फिर अंदर आ रहा है. दिस मैकेनिज्म आई विल बी गोइंग टू एक्सप्लेन यू लेटर. ह्यूमन रिसेप्टर की अगर बात करें तो कोरोना वायरस ऐसा नहीं है कि आके कहीं भी हमारी बॉडी पे अटैच हो जाएगा, उसके लिए भी एक पर्टिकुलर रिसेप्टर है जहां पे वो अटैच होगा, एंड दैट इज द ACE2 रिसेप्टर, ह्यूमन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर. और इसी पे क्यों अटैच होता है? क्योंकि ये वाला जो है, जितने भी जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो लाइनिंग है उस पे ये वाला ही रिसेप्टर पाया जाता है. अब इस लाइफ साइकिल की 5 स्टेप्स हैं. पहला है अटैचमेंट, कि पहले अटैच कैसे होना है उसे. जब एक बार अटैच हो जाएगा उसके बाद इट गोज इनटू पेनिट्रेशन. अटैचमेंट और पेनिट्रेशन अलग है. अटैचमेंट का मतलब ये हुआ अगर ये होस्ट सेल है, सिर्फ ये आगे इस पे लगा है, अटैच हुआ है, पेनिट्रेट अंदर नहीं गया है. देन बायोसिंथेसिस. बायोसिंथेसिस में रेप्लिकेशन होगा, एक बार अंदर तो घुस गया, अब रेप्लिकेट होगा. उसके बाद होगा उसका मेच्योरेशन, मेच्योर होगा, और देन इट रिलीज. अब हम इस साइकिल को डिटेल में पढ़ेंगे. आई विल एक्सप्लेन टू यू. एंड बिफोर इवन स्टार्टिंग फॉर द अटैचमेंट, लेट्स टॉक अबाउट द स्पाइक प्रोटीन स्ट्रक्चर. मैं बार बार इस चीज पे फोकस कर रही हूँ कि द स्पाइक प्रोटीन है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसका. उसका रीजन नाउ आई विल बी टेलिंग यू. ये जो आप ब्लू वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है, और जो साइड में है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डिटेल्ड इमेज ऑफ द स्पाइक. इसमें 2 सब यूनिट्स होते हैं, S1 और एक S2, और ऊपर जो एक बना हुआ है RBD, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, वो रिसेप्टर को बाइंड करने वाला लोकेशन वहां पे है. The spike protein is seen to be protruding from the viral surface and is the most important one for attachment or
पेनिट्रेशन, अटैचमेंट के लिए भी और पेनिट्रेशन के लिए भी स्पाइक प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. And this is composed of two functional subunits, S1 and S2 subunits, among which S1 is responsible for binding to the host cell receptor. S1 का काम सिर्फ बाइंड करवाना है, फ्यूजन नहीं करवाएगा. फ्यूजन करवाता है S2 subunit. And spike protein is composed of a transmembrane trimetric glycoprotein protruding from the viral surface, which determines the diversity of coronavirus and host tropism. जितनी भी डाइवर्सिटी है, कौन सा वायरस में क्या वेरिएंट है, उसके वेरिएशंस कैसे चेंज हो रहे हैं, म्यूटेशन हो रहा है, वो उसके स्पाइक के स्ट्रक्चर में ही है. वहां पे जैसे ही कोई चेंज आएगा, उसका होस्ट का जो मैकेनिज्म है, होस्ट से मिलने का मैकेनिज्म है, वो चेंज हो जाएगा. और ये इसलिए इम्पोर्टेंट. नाउ कमिंग टू द अटैचमेंट, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब तक अटैच नहीं होगा, जब तक हमारे सरफेस पे आएगा नहीं, कुछ फायदा ही नहीं है. बाहर रह के तो वैसे भी पैरासाइट इन डोर्मेंट स्टेज पर है. आप अगर एग्जांपल लेना चाहें, अगर आपका घर है, चोर खड़ा है बाहर, ही नीड्स टू गेट इनसाइड, सामान लेना है, पहला स्टेप क्या होगा? लॉक खोलना. सारी मेहनत वहीं पे लगनी है कि लॉक कैसे खोलना है या जो भी करना है. वहां पे जितने कंफर्मेशनल चेंजेस, वंस दैट thief is inside your house, he has the overall control of your house. सारा कंट्रोल उसके हाथ में. बस यही मैकेनिज्म यहाँ इसका भी है, अटैचमेंट का भी. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये स्पाइक प्रोटीन का जो था S1 S2 सब यूनिट का, ये उसका भी बहुत ज्यादा जेनेटिकली डीएनए वाला जो है हाईली मैग्नीफाइड इमेज है. अब इसका जो अटैचमेंट होता है वो भी 3 फेज में है. वो टेल है वहां की, वो पर्पल वाला पार्ट जो है वो स्पाइक है. ये हमारा ह्यूमन रिसेप्टर है, ACE2 जो है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन पर है. और आप ध्यान से देखें, वो भी रिसेप्टर जो है वो भी डायरेक्टली हमारे सरफेस से अटैच नहीं है, उसकी भी टेल है. दैट मीन्स अटैचमेंट के लिए वो है, पेनिट्रेशन के लिए उसके नीचे जाना है. So there are 3 clinical phases that allows. पहले फेज में क्या होता है, ये क्लोज कॉन्फ़िगरेशन में है स्पाइक प्रोटीन. इट नीड्स टू ओपन अप. जब तक ये ओपन नहीं होगा, इट कैन नॉट बाइंड टू द ACE2 रिसेप्टर. सेकेंड इज द स्पाइक प्रोटीन बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर ऑन द आउटसाइड ऑफ आवर सेल. सेल की बाहर ही वो हमसे अटैच होता है हमारे सेल पे. एंड दिस बाइंडिंग triggers the conformational change within the spike protein and allows another human protein to cleave the spike. क्लीव द स्पाइक का मतलब है, अगर स्पाइक प्रोटीन है, S1 है, S2 है, क्लीव का मतलब है कि यहाँ से एक एंजाइम ने उसे काटा, वो चीज हटी, नया से अंदर आया और वो रिसेप्टर से अटैच होने के लिए रेडी हो जाएगा. इस तरीके से ये इसका अटैचमेंट है. यहाँ पे अगर जेनेटिकली अभी रिसर्च चल रही है इस चीज पे, जो इसके 3 स्टेप है. एक ये कन्फर्मेशन, ओपन से क्लोज क्लोज से ओपन हो रहा है और उसके बाद भी फिर अटैच हो रहा है. बीच में एक इंटरमीडिएट पोजीशन आ रही है. अगर कोई ड्रग ऐसी डेवलप हो जाए जो इस पोजीशन को टारगेट करे, इंटरमीडिएट फ्रॉम ओपनिंग टू डॉकिंग ऑन द रिसेप्टर, इस वाले पे टारगेट करे, तो मे बी या क्या होगा, स्पाइक प्रोटीन वैसे ही इनएक्टिवेट हो जाएगा. और जब स्पाइक प्रोटीन इनएक्टिवेट हो जाएगा, एंट्री खत्म. जब एंटर नहीं होगा तो बाकी के प्रोसेस वैसे भी नहीं होने. Finally, the new exposed surface of the spike interacts with the host cell membrane and enables the viral RNA to enter and hijack the cell. वही चोर वाला है साहब, एक बार ताला खुल के अंदर आया, then he can replicate or duplicate or whatever he wants to do. Now coming to the second part, that is the penetration. अब penetration के लिए जो हमारा receptor है human cell का, ये angiotensin converting enzyme 2, this is responsible. और ये भी receptor क्यों responsible है? क्योंकि जो सार्स का जो कोरोना वायरस है, उसका जो स्पाइक का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज कंपैटिबल टू दी रिसेप्टर ऑफ ACE2 रिसेप्टर. और ये रिसेप्टर भी कहाँ पे ज्यादा है? पल्मोनरी एपिथेलियल सेल्स. पल्मोनरी एपिथेलियल सेल्स, दे आर लाइनिंग फ्रॉम द नेजल कैविटी टू द ट्रैकिया, ब्रोंकियोल टिल द एल्वियोलस. अब क्या होता है, पेनिट्रेशन में भी 2 प्रोसेस हैं, यहाँ पे भी स्पाइक का ही है. जब आफ्टर बाइंडिंग द S प्रोटीन अंडरगोज एक्टिवेशन, अब बाइंड हो गया, अब उसे एक्टिवेट होना है. एक्टिवेशन के लिए भी 2 प्रोसेस, 2 स्टेप है, दैट इज द प्रोटीएस क्लीवेज. यहाँ पे थोड़ा सा जेनेटिक्स है कि क्लीवेज कैसे होता है, वो अटैच कैसे करता है. फर्स्ट वन इज द प्राइमिंग. S1 S2 क्लीवेज साइट जो उस पे था स्पाइक पे, S1 एंड S2, वहां पे प्राइमिंग होती है. प्राइमिंग का मतलब होता है, प्राइमिंग इज द इनिशियल स्टेप फॉर द सिंथेसिस ऑफ DNA और RNA. अगर DNA या RNA बनना है तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, कुछ स्टार्ट होने के लिए एंजाइम होना चाहिए ना, प्राइमर वही करता है. जब स्टार्ट हो गया, इनिशिएशन हो गया सिंथेसिस का, देन कम्स द क्लीवेज फॉर एक्टिवेशन एट द पोजीशन एडजेसेंट टू अ फ्यूजन पेप्टाइड विद इन द S2 सब यूनिट. S2 सब यूनिट में जहां पे पहले से क्लीवेज हुआ था, वहां पे दोबारा से एक क्लीवेज होता है ताकि जो प्राइमिंग वाला सिंथेसिस है वो आगे चल सके.
इसलिए क्योंकि वायरस का मकसद सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर अंदर एंटर होना नहीं है। वो क्या करेगा, जो अपना आरएनए मटेरियल है वो आरएनए मटेरियल हमारी होस्ट में डाल के हमारी बॉडी की मशीनरी यूज करके अपने आप का अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा, रेप्लिकेशन करेगा और अपनी फौज बनाएगा, और एक वायरस से 1000 बनेंगे, फिर वो बाहर जाएगा और कम्युनिटी ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सो दिस इज द पेनिट्रेशन, प्राइमिंग और क्लीवेज। प्राइमिंग मतलब कि इनिशियल स्टेज जहाँ से सिंथेसिस स्टार्ट होती है, चाहे वो आरएनए की हो या डीएनए की हो। क्लीवेज कटिंग होती है एंजाइम्स की, वहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूरिन और टीएमपी RHS2, ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं ACE2 एंजाइम रिसेप्टर के लिए, ज्यादा हेल्प करेंगे। और जो लास्ट वाला है फ्यूजन पेप्टाइड, दैट इज एक्चुअली आफ्टर द फ्यूजन, पेनिट्रेशन के बाद सेल, ह्यूमन सेल, जो ग्रे वाला पार्ट नीचे दिख रहा है वो हमारा ह्यूमन सेल है लंग्स का, और ऊपर वाला जो है दैट इज फॉर द वायरस। सो हियर फाइनली कम्स द पेनिट्रेशन होने के बाद comes the biosynthesis and maturation. अब एंटर हो गया, एंटर होने के बाद इट विल डू एवरीथिंग टू रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई और रेप्लिकेशन के लिए भी कुछ चीजें चाहिए। पिक्चर से आप देख रहे हैं, उसमें सेकंड वाले वायरस में जो है वो रिसेप्टर से अटैच हुआ है, थर्ड वाले में इट हैज पेनिट्रेटेड। जैसे ही पेनिट्रेट होता है ये हमारे सेल मेम्ब्रेन की वॉल और वायरस की वॉल वो दोनों मिल जाती है। उससे ये होता है कि जो हमारे होस्ट सेल का रिसेप्टर है उसे थोड़ी सी गलत फहमी हो जाती है कि ये हमारा ही पार्ट है, एंड इट स्टार्ट्स रेप्लिकेटिंग। उससे ज्यादा नहीं, अगर एक बार एंटर हो गया उसके बाद आवर होस्ट कैन नॉट डू मच। Post membrane fusion, the virus enters the pulmonary alveolar epithelial cells and it undergoes replication and formation of a negative strand RNA by the pre-existing single strand RNA through RNA polymerase activity, that is transcription. इसका मतलब ये है कि हमने पहले जब स्ट्रक्चर की बात की थी हमने कहा था कि वो पॉजिटिव सेंस, इसका जो आरएनए है पॉजिटिव सेंस आरएनए है एंड सिंगल स्ट्रैंडेड। अब सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से तो ये अपना मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है आरएनए का या डीएनए का दैट इज डबल हेलिकल, दोनों पेयर का होना जरूरी है। अगर ये आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड है ये वाला, अगर ये नहीं है इसके पास तो ये इससे रेप्लिकेट नहीं कर सकता। रेप्लिकेट करने के लिए उसके पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों स्ट्रैंड होने जरूरी है। तो ये पहले क्या करता है, पॉजिटिव है नेगेटिव बनाएगा, और उसके लिए चाहिए इसको आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी एंड दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। जब वो टेम्पलेट बना लेगा, उसके पास पॉजिटिव सेंस आरएनए तो था ही, पॉजिटिव वाला नेगेटिव उसने खुद से बना लिया, देन इट विल यूज द पॉजिटिव आरएनए टू रेप्लिकेट। उसको टेम्पलेट की तरह यूज करेगा और आगे रेप्लिकेशन के लिए यूज करेगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। बेसिक जो सेंट्रल डॉगमा है हमारे जीन एक्सप्रेशन का, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, उससे ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है उससे पहले आपने एमआरएनए बनाया, उसके बाद प्रोटीन्स बनाया और वो सारे डिस्चार्ज हो गए। इसको अगर हम डिटेल में देखें तो दिस इज द स्ट्रक्चर बेसिक। ये जो सीक्वेंस है ये हमारी सारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं या जो भी होते हैं वो इस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए बना और प्रोटीन बन के वो फिर वहां से निकल गया। अब एमआरएनए जो है, एमआरएनए हैज दिस क्वालिटी दैट इट कैन डायरेक्टली बी ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन विदाउट द नीड ऑफ एनी एंजाइम। लेकिन जो वो नेगेटिव सेंस है उसको पॉजिटिव में करा है, तो इसलिए उसको चाहिए कि वो अपना पॉजिटिव से नेगेटिव दोनों को ले और टेम्पलेट बनाए। अब उसने रेप्लिकेट कर लिया, नेगेटिव बनाया अपना, उससे पॉजिटिव से अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट करा। नाउ कम्स द मैच्योरेशन। अब एक बार जब उसने अपने आप को बना लिया, अच्छा एक और बात, जो सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस आरएनए है ये डायरेक्टली बना सकता था प्रोटीन, पर ये नहीं बनाया इसने, इसलिए क्योंकि इसका मकसद प्रोटीन बनाना नहीं है। प्रोटीन बनाना बाद में है, पहले रेप्लिकेशन है। उसको एक ही वायरस का अपना नहीं बनाना, पहले रेप्लिकेशन के लिए वो हजार लाखों वायरसेस बनाएगा, उसके बाद इस ट्रांसक्रिप्शन वाले प्रोसेस पे जाएगा जिसमें ये ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का था। मैच्योरेशन हो गया उसका, अब उसका रिलीज होना है। अब रिलीज का जो अंदर वाला जो आरएनए का जो स्ट्रक्चर था, आरएनए को जिसने एनकैप्सूल कर रखा था न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन, ये क्या करेगा, जो न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड्स हैं, द न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड्स ऑफ द आरएनए, दे बाइंड टू द एंड प्रोटीन and then they are taken by the M protein to the cellular endoplasmic reticulum. And these newly formed nucleocapsids are then enclosed in the endoplasmic reticulum and transported to the lumen, from where they are transported by Golgi vesicles to exocytosis. अब यहाँ पे मैच्योर हो गया, बन गया सेल का, वो तो मल्टीप्लिकेशन हो गया उसका। फिर जाना कैसे है बाहर, सेल से बाहर कैसे निकलेगा, वो तो न्यूक्लियस में बना हुआ है।
जो हमारा ये सेल का स्ट्रक्चर है, बेसिक सेल का जो स्ट्रक्चर है फिजियोलॉजी में, यहाँ न्यूक्लियस जो है इसमें उसने अपना आरएनए बना लिया, लेकिन उसे यहाँ नहीं रहना है, उसको बाकी दूसरे सेल्स को भी इन्फेक्ट करना है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बिल्कुल न्यूक्लियस से अटैच होता है। तो इससे क्या होगा, वो यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टर, इट विल टेक द आरएनए मटेरियल एंड ट्रांसपोर्ट टू द गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस में इधर रिसीविंग साइड है, उधर शिपिंग साइड है, बिल्कुल वही ट्रांसपोर्टेशन जैसा। यहाँ पे इसने रिसीव करा, वहां पे उसने शिप करा, और बिल्कुल सेल के उस सेल मेम्ब्रेन के बाहर उस चीज को एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर कर दिया। That means finally, after entering into our body, it is now in a position to infect the neighboring cells. The new viral particles are now ready to invade the adjacent epithelial cells as well as for providing a fresh infected material for community transmission via droplets. So if we see about this is the gist of that overall attachment, penetration and all. इसमें जब ये यहाँ पे जो सिजर बनी हुई है, यहाँ पे जो फ्यूरिन से अटैच हुआ है, तो ये जो है ब्लैक वन, तो ये हमारा सेल है, और ये लास्ट वाले पिक्चर में देखेंगे तो ये हमारे सेल से ही अटैच हो रहा है। और जब हमारे सेल्स में जो भी रेप्लिकेशन या जो भी बायोसिंथेसिस होगा, आरएनए का भी हो जाएगा उसको। दैट वाज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल। अब इसी का सिर्फ एक ये जस्ट है मैकेनिज्म का। मैकेनिज्म में भाई अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, मैच्योरेशन एंड रिलीज। अटैचमेंट के लिए उसे ACE2 रिसेप्टर पे स्पाइक प्रोटीन का आना, पेनिट्रेट होना स्पाइक प्रोटीन 2 के थ्रू, उसके बाद वहां पे मैच्योर होना, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का पहले डबल स्ट्रैंड आरएनए बनना, डबल स्ट्रैंड बनने के बाद अपने आप को रेप्लिकेट करके अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना। जब पॉपुलेशन बढ़ाता है फिर सेल के थ्रू एक्सोसाइटोसिस के थ्रू दूसरे सेल में जाना और उन्हें इन्फेक्ट करना। ये पूरा लाइफ साइकिल है कोरोना वायरस का सेल्यूलर लेवल पर। Now coming to its clinical stages. Although much is not known about the mortality of the clinical disease, much less is known about its pathobiology. And details of the cellular responses to the viruses are not known. A probable course of events can be postulated based on the past studies with coronaviruses. And this can be divided into 3 stages, depending upon which part of the respiratory system has been affected. वो अभी जब मैं जो मैकेनिज्म पढ़ा, दैट वाज एट सेल्यूलर लेवल, सेल्स पे क्या हो रहा है, बेसिक सेल पे वही मैकेनिज्म वो पूरी बॉडी में जाएगा, अलग अलग सेल्स पे करेगा और वहां से वो फैलेगा। नाउ कमिंग टू दी क्लिनिकली, हम क्या देखेंगे, क्लिनिकली पैथोजेनेसिस क्या होगी, सिम्टम्स कैसे आएंगे, वो डिपेंड करता है एनाटॉमी पे इसकी और फिजियोलॉजी पे। दिस इज नॉट नीडेड बट जस्ट फॉर अस टू रिमेंबर, दिस इज द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड दैट इज द रेस्पिरेटरी जोन। वो एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है। अगर कोई इंफेक्शन लैरिंक्स तक रह रहा है, अपर रेस्पिरेटरी तक रहेगा, तो वो नेजल में ही है इफेक्ट कर रहा है। अगर नीचे आ रहा है, ट्रैकिया है, ब्रोंका है इन्वॉल्व है, देन यू विल से दैट द वायरस हैज रीच्ड द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एल्वियोलाई रेस्पिरेटरी जोन। जो हमारा बेसिक गैसियस एक्सचेंज यूनिट है वो एल्वियोलस है। जो भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, जो नॉर्मल मैकेनिज्म हमारा है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का, दैट डिपेंड्स ऑन द हेल्दी कंस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलस। वो रेस्पिरेटरी जोन है। अगर यहाँ पे कोई इंफेक्शन आ रहा है तो then it is started. Now coming to the first stage. First stage is known as the asymptomatic stage. Asymptomatic because the infection does not have any kind of symptoms. Physical symptoms नहीं होते इसमें। अब ये कैसे है, हमने भी पता कर अभी देखा था कि सेल से वायरस बाहर आ गए, दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं, वो इन्फेक्ट करते करते they might even again reach to the nasal cavity. The inhaled virus या फिर community transmission हो गया उस सेल का। The inhaled viruses with SARS coronavirus 2 likely binds to the epithelial cells in the nasal cavity and starts replicating. अब यहाँ पे जो मैंने बोला है कि it starts replicating, जो मैंने वो 5 स्टेप का प्रोसेस बताया है वो यहाँ पे होगा कि कैसे रेप्लिकेट कर रहा है, लेकिन उसका जो कंटामिनेशन है, वायरस का लोड है, that only remains in the nasal cavity in asymptomatic state. अब यहाँ पे ACE2 is the main receptor for growth, yes. ACE2 जो है वो SARS कोरोना वायरस इवन स्ट्रक्चरली भी सेम है, और अगर रिसेप्टर की बात करें वहां पे भी जो कोरोना वायरस जो SARS कोरोना वायरस जो 2002 में हुआ था, वहां पे भी जो रिसेप्टर था वो बिल्कुल यही सेम था, ACE2 रिसेप्टर। देयर इज लोकल प्रोपगेशन ऑफ वायरस बट अ लिमिटेड innate इम्यून रिस्पॉन्स। यहाँ पे वायरस लोड होता है बट बहुत लिमिटेड होता है, नेजल कैविटी में है, तो इम्यून रिस्पॉन्स भी उतना ज्यादा जनरेट यहाँ होता नहीं। वायरल बर्डन भी बहुत ज्यादा लो रहता है बट द पेशेंट इज इन्फेक्शियस।
इसका मतलब ये है कि पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, उसके नेजल में रेप्लिकेशन हो रहा है वायरस का, वो उसे नहीं पता, बट he is equally infective in comparison to patients who have symptoms. अगर किसी पेशेंट के सिम्टम्स है, उसे पता है कि उसे कोरोना वायरसेस है, अगर यहाँ कोई बैठा है, उसे वो हेल्दी है, उसे कोई सिम्टम नहीं है, मगर वहां उसके रेप्लिकेशन हो रहा है, उससे भी ट्रांसमिशन होगा, उतना ही ट्रांसमिशन होगा जितना जिसके पास सिम्टम्स है उसमें। नाउ कमिंग टू द सेकंड स्टेज। अब पहले स्टेज में इट वाज कन्फाइंड ओनली टू द नेजल कैविटी, सेकंड स्टेज में इट एंटर्स द अपर एयरवे एंड कंडक्टिंग एयरवे रिस्पॉन्स। कंडक्टिंग एयरवे रिस्पॉन्स के लिए ये वाला है इमेज, द ऊपर वाला जो है दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, कंडक्टिंग सिस्टम एंड द रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग सिस्टम जो है वो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक ही रहता है, जब रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में आएगा तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। तो सेकेंड स्टेज में जो वायरस जहां तक जाता है वो सिर्फ टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक ही जाएगा, सिर्फ कंडक्टिव सिस्टम तक। Migration of the virus from nasal epithelium to upper respiratory tract via the conducting airways, and due to the involvement of the upper airway, the disease manifests with symptoms of fever, malaise, and dry cough. इस स्टेज में जब वायरस कंडक्टिव सिस्टम में आ जाएगा, सिम्टम्स तब इनिशिएट होंगे। अगर खांसी है, कैसी होगी खांसी? जब तक यहाँ पे इस वाले सिस्टम में अगर कोई नॉर्मल फंक्शन हो रहा है, वहाँ वायरसेस नहीं है तो वहाँ पे नॉर्मल है, बट अगर है वहाँ पे तो आपके पास सिम्टम्स आएगा मलेज का, ड्राई कफ का, इरिटेशन का, या कुछ भी बेसिक सिम्टम जो होगा, यू विल हैव दैट सिम्टम। इनिशियल वाले फर्स्ट स्टेज में जब एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन थी, वहाँ पे इनेट इम्यून रिस्पॉन्स वाज नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल। यहाँ पे ग्रेटर इम्यून रिस्पॉन्स इन्वॉल्विंग द रिलीज ऑफ CXC मोटिव काइमोकाइन लाइगेंड एंड इंटरफेरॉन्स फ्रॉम द वायरस इन्फेक्टेड सेल। जैसी होगा, अब जाहिर सी बात है, कोई बाहर से आ रहा है तो हमारी बॉडी पे डिपेंड करेगी। इमीडिएट इम्यून रिस्पांस पे इंटरफेरॉन्स और इंटरल्यूकिन लाइगेंस ये सारे के सारे रिलीज हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेज, दिस इज द लास्ट स्टेज, जहां पे हमारा एल्वियोलर सैक जो रेस्पिरेटरी यूनिट है मेजर, जहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है, वो इफेक्ट हो जाता है। और ये वाले जो पेशेंट्स, अगर किसी को यहाँ पे वायरस पहुंच गया है, सिम्टम सीवियर होंगे, बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी रेट भी जो है वो इसी वाले में है। वैसे मोर्टेलिटी रेट इज 20% इन दिस कैटेगरी। The virus now reaches the gas exchange unit of the lungs and infects alveolar type 2 cells. If you see the picture, इसके अंदर जो ब्लू वाला है वो alveolar type 2 cells है, और इसके साइड में जो ये पिंक वाला फ्लूइड फ्लो हो रहा है, that is type 1 alveolar cell. अब SARS, ये जो कोरोना वायरस है, that through the receptor it attaches to type 2 alveolar cells. type 1 पे ये इफेक्ट नहीं होता। इस पर रिसर्च अभी चल रही है कि क्यों नहीं होता है। The infected alveolar unit tends to be peripheral and subpleural. Periphery और subpleural का मतलब है जितने बॉर्डर्स पे हैं एल्वियोलाई के, इन्फेक्शन वहां होता है। इसी वजह से अगर बॉर्डर्स पे इन्फेक्शन हो रहा है तो जो इन्फ्लेमेटरी या जो हमारे मैक्रोफेजेस अटैक करेंगे उसके वायरस के, वो भी बॉर्डर्स पे होगा, तो जो मेम्ब्रेन होती है इस चीज में वो इफेक्ट हो जाती है। They propagate inside type 2 cells. Large number of viral particles are released and cell undergoes apoptosis and die. Apoptosis का मतलब होता है programmed cell death. ये हमारा, अगर वहाँ वायरस आ गया, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, तो एल्वियोलर जो टाइप 2 सेल्स है वो कब तक, एक लिमिट तक ही उसे रोक सकता है, इसके बाद उसमें भी डैमेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। और जब डैमेजेस स्टार्ट होता है, देन दैट सेल टेंड्स टू डाई बाय प्रोग्राम सेल डेथ। ये ऑलरेडी हमारी बॉडी में रहता है, दो तरह के प्रोग्राम सेल डेथ होता है और नेक्रोसिस। The end result is a self-replicating pulmonary toxin as the released viral particles infect type 2 cells in adjacent units. वहां से वायरस निकला, एक को इन्फेक्ट करा, वो सेल मर गया, बाहर आया, अब दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेगा। इस तरीके से वो चीज बढ़ती है, और सिवियरिटी भी इसी चीज पे डिपेंड करती है कि कितने एल्वियोलर सेक्शंस हैं जो हमारे वहां पे डैमेज हो रहे हैं। To make it more clear, this is the picture of the alveolus, जहाँ पे ये होता है, this the left side is the normal one, ये normal structure है हमारा, सारे यहाँ पे epithelial type 2 cells, type 1 macrophages सब है, इसमें कोई fluid भी नहीं है। Severe cases में क्या होता है, pulmonary edema होता है, fluid initiate हो जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे दिख रहा है। और जो ऊपर से कोरोना वायरस आ रहा है, that is attaching to the ACE2 receptor, वहाँ पे अटैच हुआ, मैक्रोफेजेस रिलीज हुए, सारा रेप्लिकेशन हुआ, हमारी तरफ से सारे साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन 1, 6, 5 बहुत सारे हैं, वो सारे रिलीज होते हैं इस चक्कर में। और ये पेरिफेरी पे था, पहले बताया था कि मेम्ब्रेन पे जो जितना भी अटैक हो रहा है या जो भी प्रोसेस या जो भी चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज अकरिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो आगे जाके क्या होगा, एक लेवल पे इट विल बर्स्ट, ये मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, सेल इंजरी हो जाएगी यहाँ पे, और जैसी रप्चर होगी
पूरा एल्वियोलस वो वाला एल्वियोलस sac जो है वो पूरा खराब। इसी वजह से यही एक रीजन है कि जब हम किसी का SpO2 लेवल बहुत ज्यादा गिर रहा होता है, हम उसे ऑक्सीजन दे रहे होते हैं, वो फिर भी उससे उसके कोई फायदा नहीं होता। रीजन भी कहाँ से एक्सचेंज होगा, वो तो वहां से पूरा ही वो खराब है। दैट लीड्स टू मोर्टेलिटी एंड दिस इज नोन एज अ साइटोकाइन स्टॉर्म। जितने भी इंटरल्यूकिन 1, 6, 5 और ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा बीटा डेल्टा ये सब रिलीज होते हैं, इसको कंबाइनली साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। साइटोकाइन इज एक्चुअली शॉर्ट लिव प्रोटीन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं दूसरे सेल्स को मदद करने के लिए। ये ऐसे नहीं आते, वैसे मैक्रोफेजेस में रहते हैं, बट दे आर इन एन इनएक्टिव फॉर्म। द होस्ट सेल अंडरगोज एपोप्टोसिस with the release of new viral particles which then infect the adjacent type 2 cell alveolar in the same manner. एक को जैसे इन्फेक्ट करा, अब यही प्रोसेस चलता है सारे एल्वियोलर सैक में एंड दिस रिजल्ट्स इनटू डिफ्यूज्ड एल्वियोलर डैमेज। इस स्टेज पे ऑक्सीजन भी काम नहीं करेगी। इवन इफ यू गिव द पर्सन 100% ऑक्सीजन, the patient won't respond to it. So this was the clinical stages and this is the end result of pathological end result of COVID-19. ये जो पिक्चर है ये ह्यूमन सेल्स टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स को आर्टिफिशियली इन्फेक्ट करवाया गया है। ये ह्यूमंस के अंदर का नहीं है, इन विट्रो में आर्टिफिशियली सार्स कोरोना वायरस 2 से इन्फेक्ट करवाया गया है और ये रिजल्ट देखा गया है। वो जितने भी ब्लैक वाले दिख रहे हैं वो सारे कोरोना वायरसेस के डबल मेम्ब्रेन है और पेरीफेरी पे, क्योंकि इन्फेक्ट भी उसने पेरीफेरी पे किया था, तो जितने भी वो सारे सेल्स आएंगे वो पेरीफेरी और रिजल्टेंट इज डिफ्यूज्ड एल्वियोलर डैमेज विद फिब्रिल रिच हाइलाइन मेम्ब्रेन और मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स। जितने भी वो ब्लैक दिख रहे हैं दे ऑल आर जाइंट सेल्स। दिस इज हिस्टोपैथोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ COVID-19. Now this is the gist of whatever I have told you till now. हेल्दी में क्या है, इन्फेक्टेड में क्या है, मॉडरेट में क्या है, सीवियर में क्या है। हेल्दी में एल्वियोलस का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो उसमें बिल्कुल नॉर्मल है, पेरिफेरी भी नॉर्मल है, टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स हैं, सर्फेक्टेंट है, सब कुछ है। इन्फेक्टेड में सिर्फ इन्फेक्शन होगा, ज्यादा सिम्टोमेटिक नहीं होगा। मॉडरेट में क्या होता है, इसके अंदर प्लूरल एडिमा स्टार्ट हो जाता है, मैक्रोफेजेस इसमें इनिशिएट होंगे और जो सर्फेक्टेंट जो सरफेस एरिया है दैट इज रिड्यूस। मॉडरेट में ये और ज्यादा कम हो जाता है सरफेस एरिया और सीवियर में बिल्कुल खत्म। जो सर्फेक्टेंट एरिया बिल्कुल खत्म हो जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एल्वियोलाई का जो स्ट्रक्चर है उसके बीच में जो भी है वो सेल इंजरी होने की वजह से यहाँ से जो भी फ्लूइड आएगा, जो भी ऑक्सीजन होगा वो वहां से निकल के बाहर, इट वोंट हेल्प इन प्रॉपर रेस्पिरेशन। जब सब कुछ डैमेज हो जाता है, सेल खत्म मर गई, तो ये उसका हाईली मैग्नीफाइड इमेज है। ये ब्लू वाले जितने भी हैं ये सारे डाइंग सेल्स हैं हमारे, और जो ग्रीन वाला पार्ट है ये कोरोना वायरस है जो धीरे धीरे करके म्यूटेट कर रहा है अपना साइज बाई रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस, रेप्लिकेट करके मल्टीप्लाई करके और ये खत्म हो रहा है। So this colorized microscopic image shows a dying cell infected with SARS coronaviruses, and each time the virus replicates in a cell, it has a chance of mutation. जितनी बार रेप्लिकेट करेगा, जितनी बार ये कोरोना वायरस रेप्लिकेट कर रहा है, म्यूटेशन के चांसेस उतने ही इक्वल होते हैं। अब म्यूटेशन आ गया है तो लेट्स टॉक अबाउट म्यूटेशन आल्सो। व्हाट म्यूटेशन एक्जैक्टली इज? व्हेन वायरसेस इन्फेक्ट यू, दे अटैच टू योर सेल्स, gets inside them and make copies of their RNA which helps them spread. यही था, इन्फेक्ट करा, अटैच हुआ, अपनी कॉपीज बनाए। लेकिन जब अपनी वो कॉपी बनाता है, कभी कभी वहां कॉपिंग मिस्टेक हो जाती है। वो कॉपिंग मिस्टेक जो है दैट इज नोन एज म्यूटेशन। एग्जाम हॉल में हम बैठे हुए हैं, मेरे आगे एक बच्चा है, मुझे आंसर नहीं आ रहा, मैं कॉपी कर रही हूँ। इस्तफराग और एहतबास का क्वेश्चन है, इस्तफराग की जगह मैंने एहतबास लिख दिया। कॉपिंग मिस्टेक, पूरा सब कुछ सेम है, सिर्फ एक वर्ड से। अगर ये चीज टीचर के नजर में आ गई, मार्क्स कट गए, और अगर नहीं आई तो लक। ये म्यूटेशन में भी यही है। अगर वो म्यूटेशन बहुत माइल्ड है, इतना कि वो हेल्थ को इफेक्ट नहीं कर रहा, तो वो हेल्थ को इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर वो म्यूटेशन जीन के इस ऐसे कोडॉन पे हुआ है जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक कोड करता है, देन दैट विल लीड टू डिजीज। And these changes happen randomly and by accident, and it is very normal for viruses में replication और copying mistake बहुत ज़्यादा normal है। यही रीजन है कि हर साल हर वायरस के लिए, किसी भी डिजीज के लिए, उसमें बहुत सारे स्ट्रेन्स ऐड हो जाते हैं। स्ट्रेन ऐड होने का ये रीजन यही है कि उसमें म्यूटेशन हो रहा है। अगर एक ये वायरस है, ये रेप्लिकेट कर रहा है, तो रेप्लिकेशन में सिर्फ ये नहीं आया, अगर इसके 10 रेप्लिकेट हुए हैं उसमें से 2 का स्ट्रक्चर उससे थोड़ा अलग होगा।
जिसका थोड़ा अलग होगा वो ड्रिफ्ट की तरफ जाएगा, और जिसका पूरा ही स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा वो शिफ्ट की तरफ जाएगा। यही रीजन है इसका एंटीजेनिक शिफ्ट और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। दिस कैन बी इजीली डिस्क्राइब्ड इन विद द एग्जांपल ऑफ इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरस का जो है, जो स्पेनिश फ्लू 1918 में हुआ था, उसमें क्या है, हर साल शॉट्स लेने पड़ते हैं। वी टेक शॉट्स एवरी ईयर। क्यों लेने पड़ते हैं? एक बार अगर वैक्सीनेशन ले लिया तो हो जाना चाहिए ना। रीजन ही उसका ये है कि हर साल उसका वेरिएंट चेंज होता है, उस पर कंटिन्यूसली काम चलता रहता है कि कौन सा वेरिएंट कैसा है। लेकिन जैसे ही अगर लास्ट ईयर जो वेरिएंट रहा होगा फ्लू शॉट में, जरूरी नहीं है कि इस साल जो जिस इन्फ्लुएंजा वायरस ने आपको इन्फेक्ट करा है वो वही वाला है जो लास्ट ईयर हो, इसीलिए वेरिएंट्स की बात करते हैं। नाउ कमिंग टू द एंटीजेनिक शिफ्ट एंड ड्रिफ्ट। अब इसकी क्या वो है, recombination. Antigenic shift is the gene recombination occurring when influenza virus reassort. Reassort का मतलब होता है रीसेगमेंटेशन। बिल्कुल, अगर एक जीन का वायरस है, यहाँ से दो चीजें हटी और कुछ नई चीज आ गई, दैट इज रीअसॉर्टमेंट। एंटीजेनिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, उसमें माइन्यूट सा म्यूटेशन होगा, स्पेसिफिक पॉइंट म्यूटेशन होगा। डीएनए और आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, एटीजीसी, एडेनाइन, गुआनिन, थाइमिन और यूरासिल, यूरासिल की उसमें पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा, सिर्फ एक, या तो एडेनिन, थाइमिन, ये यूरासिल, इन सब में से कोई एक चेंज होगा, वो ड्रिफ्ट मतलब बहुत ही माइन्यूट सा चेंज होता है। शिफ्ट जो है बहुत ही ज्यादा सडन और ड्रास्टिक होता है। ड्रिफ्ट बहुत ही धीरे धीरे, मतलब एक वेरिएंट चेंज हुआ, दूसरा चेंज हुआ, तीसरा चेंज हुआ, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो ड्रिफ्ट की होती है वो बहुत ज्यादा मतलब कम होती है। एंटीजेनिक की फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि आज अगर एक चेंज हुआ है तो वो 10 साल 50 साल ऐसे जाके उसमें शिफ्ट होगा, चेंज होगा। Post range frequency, virus type and examples. ये जो पिक्चर है एंटीजेनिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट की बात अगर हम कर रहे हैं, अगर हम शिफ्ट देखेंगे तो ये एक वायरस है, इसका आरएनए ब्लू है, ये दूसरा वायरस है, इसका आरएनए रेड है। अगर शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट में क्या होगा, पूरा रीअसॉर्टमेंट, पूरा जीन जो है उसमें चेंजेस आ गए हैं एंड इसके अंदर रेड और ब्लू दोनों आ गए। इसका मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ए ऑल्सो एंड बी ऑल्सो। तो जो एंटीजेनिक शिफ्ट है, it leads to the and results in another subtype। जो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट की अगर बात करें, जो उस साइड जो पिक्चर अगर आप देखें तो वो जो हीम एग्लूटिनिन जो ऊपर ट्राइंगल येलो वाला लगा हुआ है, इफ इट गोज टू ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट में वो ट्राइंगल जो है उसका शेप चेंज हुआ है बस, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो दिस रिजल्ट्स इनटू ड्रिफ्ट, और अगर वो पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, सब टाइप बन जाए, तो वो शिफ्ट कहलाया। दैट मीन्स कि ड्रिफ्ट में सिर्फ वेरिएंट्स बदलते हैं, शिफ्ट में पूरा सब टाइप बदल जाएगा। That was all about the modern concept and pathogenesis of this. Now coming to the Unani perceptions, what our Unani scholars have told about this COVID-19 or this. The dominance of temperature exists, as already discussed. I have told that Humai Vabaiya and Nazlai Vabaiya. There is dominance of temperature in Nazlai Vabaiya in Humai Vabaiya, and there is influence of Qatar symptoms in Nazlai Vabaiya. Qatar here means mucus, accumulation of mucus or running nose symptoms. These are the catarrhal states. Person with a comorbid state or a weak constitution have been described by Ibn Sina as being more susceptible to epidemic disease and having a poor prognosis. Exactly, अगर किसी का immune system बहुत weak है, immunocompromised person है, उसका immunity response बहुत कम है, तो वो चाहे कोरोना वायरस हो या नॉर्मल फीवर हो, that person will be affected more in comparison to a healthy person. Moreover, the importance of air purification, modes of transmission of infection, significance of isolation have also been defined by Ibn Rushd in his book Kitabul Kulliyat. Air purification, transmission, infection, isolation, इन सब की बात हमारे यूनानी तब्बाओं ने की है. That means उन्हें इन सब चीजों की knowledge तब भी थी जब ये कोरोना का existence नहीं था. Now, what Ibn Sina has said in regard to COVID-19 or epidemic, जो हमारे बेसिक यूनानी क्लासिकल लिटरेचर है, इन दैट ही हैज रिटन एयर एंड वाटर आर कंटामिनेटेड ओनली आफ्टर एडमिक्सचर ऑफ अजसाम खबीसा व्हिच डज नॉट हैपन अदरवाइज. अगर एयर में कोई भी कंटामिनेटेड माइक्रोब नहीं है या अजसाम खबीसा नहीं है, एयर प्यूरिफाई रहेगी, और उसमें अगर नहीं है तो नॉर्मल ही रहना है उस एयर में, बिना मतलब एक्सटर्नल फैक्टर की कभी भी एयर में कोई भी तब्दीली नहीं आएगी. He further states that such contamination can also be brought about if the dead bodies of dying people due to an epidemic are not disposed of properly. ये वाला जो कंसेप्ट है कि प्रॉपर बॉडी का डिस्पोजल अगर ना हो, उससे इतनी वबा फैलेगी. कोविड का यही था, स्टार्टिंग जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें ये था कि
बोला गया था कि जलाना नहीं है, डिस्पोज ऑफ उसका प्रॉपर था, टच करने नहीं दे रहे थे, पेशेंट से मिलने नहीं दे रहे. रीजन भी they know that even after dying the virus is able to infect the healthy individuals who are surrounding that dead body. ये इब्ने सीना ने तब कहा था कि अगर डेड बॉडी है तो आपको उसके पास या तो प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करना है, बिकॉज दैट कैन ऑल्सो बी अ ब्रीडिंग एरिया फॉर कंटामिनेशन. उस टाइम के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात है, because he could envision at that time that yes, he had this idea even without any laboratories, no microscope, nothing, no blood test. He still had that even dead bodies can transfer. This was his key observation, we can say. Furthering the view, he stated that epidemics spread from one person to other and one city to another like a message or by Atsamia Khabisa present in water. This is an uncommon. He also stated that epidemic जो है एक person से दूसरे person तक जिस तरीके से है वो एक message की तरह, he has just correlated it with messages. ये विंड का डायरेक्शन, और यूनानी में विंड के डायरेक्शन को भी लेके बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है वबा के फैलने में. Zakaria Razi has absolute idea of isolation and he stated that transportation of public must be stopped during epidemic of plague and also advised the people that they should not stay together in crowded places when somebody has leprosy or epidemic fever because the infection can be transferred to others. Razi ने clearly बोला अगर एपिडेमिक का केस है या लेप्रोसी और एपिडेमिक फीवर के रिलेशन में उन्होंने बताया कि क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज नहीं करना, आइसोलेशन में रखना है. ये तीनों वही पॉइंट्स हैं जो हम अभी कोविड के प्रिवेंशन के लिए फॉलो कर रहे हैं. He even stated in his book treatise or Kitabul Mansuri that most epidemics spread in the autumn season. ये भी बोला है कि इसका एपिडेमिक का स्प्रेड जो है that is only responsible in few diseases, autumn season, especially if the preceding summer season was humid and the wind is still. In this context, the direction of wind is given utmost importance. राजी के अकॉर्डिंग जो भी वबा है या एपिडेमिक है वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही फैलता है. ऑटम सीजन, अगर हम यूनान मौसम खिजा में स्पेशली जब जो उससे पहले जो समर गुजरा हुआ वो थोड़ा सा तर ह्यूमिड रहा हो. Why so? Because if the climate or weather is humid, it's moist, there is hot, it is a breeding ground for infection of diseases and also for spread and communication of diseases. Direction of winds की बात इस तरीके से की गई है कि अगर कोई पेशेंट है और तबीब उसे देखने जा रहा है तो ये कहा गया है कि उस तबीब को थोड़े से ऊपर हाई लेवल पे बैठे या वहां पे रहे. Why? क्योंकि जो नीचे की जो हवा है अगर वहाँ पेशेंट बैठा है दैट इज ऑलरेडी बीन कंटामिनेटेड. या फिर अगर हवा का डायरेक्शन सपोज नॉर्थ में है, दैट डॉक्टर नीड्स टू सिट इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट एयर. If the ongoing air is in the direction of north, the doctor or any patient, he needs to sit or be in the direction or opposite direction of the wind, so that when the wind flows, the contaminated wind flows, it does not affect anyone who is in there. The direction of wind plays a significant role in the spread of Amraze Wabaiya. For example, northern winds are colder and southern winds are warmer. Northern winds cold है, southern winds warm है. अब ये difference जो है temperature का, this difference in temperature makes people more susceptible to respiratory infection. जाहिर सी बात है, cold temperature रहेगा, they more infectious stage. What Zakaria Razi has stressed. He has stressed on the fact and stated that there will always be something in common in patients of epidemic. हमेशा अगर कहीं पे भी कोई वबा फैली है तो ज़करिया राजी के अकॉर्डिंग हम कुछ ना कुछ कॉमन रहेगा, चाहे वो कोई प्लेस हो, फूड, ड्रिंक या ट्रैवल हिस्ट्री. ये वही चीजें, ये सारी वही चीजें हैं जो हम अभी कोविड-19 के प्रिकॉशन और प्रिवेंशन के लिए हम फॉलो कर रहे हैं. वी आर टेकिंग अ थरो हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, वी नीड टू नो फ्रॉम वेयर ही ट्रैवल्ड. इनफैक्ट जब ये कोरोना वायरस आया तो यही सबसे पहले सबके जो लेमैन के टर्म में था, वुहान चाइना से आया. नाउ इट इज इन इंडिया, नाउ इट इज इन एवरीवेयर एंड इट इज बिकम अ पैंडेमिक. So he has also stated this fact so early, like 865 to 925 BC or CE, whatever. Ibn Khatib in 14th century, he also stressed that most of the people who come in contact with plague victim will die. In the same context, he stated that disease spreads through clothes, utensils, jewelry, stressing on the fact of transmission through fomites. Ibn Khatib ने ये भी कहा कि अगर कोई प्लेग का विक्टिम है, उसके पास भी कोई जा रहा है, तो वो इन्फेक्शन उससे आराम से ट्रांसमिट हो जाएगी एंड दैट हेल्दी पर्सन विल आल्सो बी इन्फेक्टेड विद प्लेग. एंड ही आल्सो स्ट्रेस ऑन द फैक्ट कि अगर कोई उसका बर्तन झूठा बर्तन खा रहा है या वहाँ की जो बेडशीट जिस पे वो पेशेंट है वो है या ज्वेलरी या कुछ भी जो
फोमाइट्स के तौर पे है, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन. सो ट्रांसमिशन थ्रू फोमाइट्स, इसका भी जिक्र हमारे यूनानी में है. हमारे यूनानी में हर चीज का जिक्र है, बस प्रॉब्लम ये है कि वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉपर रिकॉग्निशन. कोई रिसर्च पेपर या कुछ ऐसा नहीं है जो हम इसको पब्लिकली लाके बताएं ताकि कम्युनिटी का भी फायदा हो और हमारा भी. बिकॉज ये सारी चीजें हम ये सब चीजें अब इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कोरोना बहुत ज्यादा हाइप पर है. हम उसके बारे में पढ़ते हैं हर जगह, फोन पे फोन रिंगटोन सुनो तो ये आप करें वो ना करें, ये सब करें, ये सारी चीजें बताई जा रही. ये सब हमारे अतिबाओं ने इतने 1000 साल पहले बता दिया जब ना माइक्रोस्कोप था, ना लेबोरेटरीज थी, ना ब्लड टेस्ट, कुछ भी नहीं था. दे कुड एडविजन इट सो मच. इन Zakira Khan's Shari, it is also written that epidemic spread is more common in humid weather as compared to the dry weather. खुश्क मौसम में एपिडेमिक स्प्रेड कम होगा ह्यूमिड के मुकाबले में, लेकिन जो सिम्टम्स होंगे, अक्यूट सिम्टम्स होंगे, वो खुश्क मौसम में ज्यादा हैं in comparison to the epidemic spread in the humid weather. The basis of Unani. As per Unani classical literature, during epidemic, prevention of diseases and maintenance of health was achieved by strengthening the tabiat and modification of asbab-e-sitta zaruriya. तबीयत असबाब सित्ता ज़रूरी है. ये सारी चीज़ें अगर किसी इंसान की नॉर्मल लेवल पे हैं, देन इट इज़ गोइंग टू लीड टू हेल्थ. और ये हमारा यूनानी का कंसेप्ट है. और अभी जो चीज़ें चल रही हैं उन सब में भी यही है कि यू नीड टू बी हेल्दी. आपका स्लीपिंग पैटर्न ठीक होना चाहिए, आपका खाना पीना अच्छा होना चाहिए, आपका जो साइकोलॉजिकली मेंटली है आप स्टेबल रहें, वो ज़्यादा सही है. ये सारी चीज़ें, हवा पानी, ये सारी चीज़ें यही बोल रही हैं असबाब. दे ऑल कन्फाइन टुवर्ड्स दी असबाब सित्ता ज़रूरी है. इतनी सारी चीजें देखने के बाद ये समझ में आ गया कि हमारे जितने भी हैं, it is evident that despite the inability to observe microbes, Unani scholars could envision and comprehend their sources and reservoirs, mode of transmission of infection, and potential causes of infection turning into epidemic. Lastly, अगर हम देखें, we can conclude by saying that the theories and observations, अभी जितनी भी मैंने आपको theories या observations हमारे अतिबाओं की बताई, they closely resemble the contemporary knowledge of infection, which reinforces the fact again that Unani medicine can play a significant role in combating current health problems. जितनी भी चीजें हो रही हैं यूनानी का उसमें बहुत बड़ा रोल है, बस हमें इसे सही तरीके से आगे बढ़ाना है. So that's all for today. Thank you everyone for being so patient and listening carefully. Now, if you have any questions or need any healthy discussions, or if you didn't understand anything across the slides, all of you are welcome. You can go ahead with your questions. क्योंकि मेरा टॉपिक पैथोजेनेसिस था, सिर्फ पैथोजेनेसिस की बात करनी है. अगर इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो वो 10 to 14 डेज का है. इसमें भी आता है विंडो पीरियड की बात, अभी रिसेंट रिसर्च में हुई है. विंडो पीरियड में बोला गया है द टाइम पीरियड फ्रॉम द इन्फेक्शन की एंट्री से लेके एंटीजन का डिटेक्शन होने तक एक विंडो पीरियड बोला गया है. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इंक्यूबेशन पीरियड. आप इसे ये बोल सकते हैं median incubation period. You can say this term window period is median incubation period, and this has been recorded as 5 to 10 days. ये कब होता है? ये अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ. जब कोई वायरस एंटर होता है बॉडी में, एंटर होने के बाद जब तक उसके एंटीजेंस उसके डिटेक्ट होते हैं, उस पीरियड को विंडो पीरियड बोला गया. दैट मीन्स अगर उस फेज में अगर कोई पेशेंट टेस्ट भी करवाएगा, एंटीजेंस ही नहीं बने हैं, आए ही नहीं है, डिटेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, उस पेशेंट का आएगा कि नो ही डज नॉट हैव कोरोना, लेकिन उसे होगा. Incubation period, symptoms, sign and symptoms, contraindications, indications, I did not talk about it because my major focus was on pathogenesis. Pathogenesis से अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को या कहीं नहीं समझ आया है तो you are welcome question. जो स्टार्टिंग में बताया था नज़लाए वबाइया का जो कंसेप्ट, हुमाए वबाइया का कंसेप्ट, पहला एग्जांपल स्टार्टिंग में बताया था गैर तबई एतबास अगर हो गया, ठीक है, अगर ये सिर्फ एक एग्जांपल है, नहीं सबसे होगा. यूनानी पैथोजेनेसिस पूरा स्लाइड मैंने इसी में बता के बता दिया कि क्या है यूनानी पैथोजेनेसिस. गैर तबई एतबास अगर हम देखें उसमें ये होगा कि जिस चीज को बाहर निकलना है वो एडिशनली आपकी बॉडी में एक तबई टाइम से ज्यादा, हाँ मैं बता रहा हूँ,
मिजाज से उसका रिलेशन ये है कि ये बोला है जकरिया राजी ने कि वो ऑटम के मौसम में, फिजाई मौसम में ज्यादा होता है। उसका मौसम क्या होता है, मिजाज, उस मौसम का मिजाज क्या होता है, हार रतब। तो इसका मतलब ये है कि जो हार रतब, जो जिस पेशेंट का मिजाज हार रतब होगा वो ज्यादा इफेक्ट होगा उस पर। ये होगा क्या चीज, पेशेंट में ज्यादा इफेक्ट। अभी जितने भी केसेस आए हैं, जितने भी केसेस कोविड के आए हैं, उसका जो पीक वैल्यू जो रहा है वो अक्टूबर सितंबर के बीच में रहा है। दैट मीन्स ये ऑटम का महीना है। डिटेक्ट होते होते वो दिसंबर तक चला गया, तो हमें लगा कि हाँ ठीक है उसे ठंड में हो रहा है, लेकिन उसका जो इनिशिएशन है, जो स्टार्ट हुआ है उसका, वो तो पहले स्टार्ट हो गया। हर किसी को इफेक्ट करेगा, चाहे बारिद मिजाज का हो या हार मिजाज का हो, रतब मिजाज का हो। बस ये होगा कि इन्फेक्टिविटी की जो इंटेंसिटी होगी वो वेरी करेगी। इन्फेक्ट तो हर किसी को करेगा। बारिद मिजाज, अगर रतब मिजाज, हार मिजाज का होगा, उसको भी इफेक्ट करेगा, बारिद को भी इफेक्ट करेगा। लेकिन इसके साथ और भी चीजें जुड़ी होंगी कि उसका हिस्ट्री क्या है। अगर उसको मेडिकली कोई और प्रॉब्लम है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है या कुछ और है, उसको जल्दी इफेक्ट करेगा। अगर वो हार पेशेंट भी हुआ तो, हार रतब मिजाज का भी पेशेंट होगा लेकिन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो बारिद से पहले उसे आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, इफेक्ट तो सबको ही करेगा। क्या हिंदी में बता दो क्वेश्चन अपना, हिंदी में क्वेश्चन बताओ अपना। क्या है, दम होता है, टेम्परेचर तब रेज हो। हाँ रतब मिजाज से क्या चेंज है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा मिजाज है ना। अगर आप लगते ही अगर आपने नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ते हैं तो भी कोई भी टेम्परामेंट हो सकता है। एक जो क्वेश्चन लगा जो क्वेश्चन था टेम्परामेंट से रिलेटेड, ठीक है। टेम्परामेंट इंसान का भी होता है और टेम्परामेंट ऑर्गन का भी होता है। बेसिकली जो ये इफेक्ट करता है उसका नाम टेम्परामेंट है। वो भी हार्ट ऑर्गन है हमारा। बेसिकली वो किसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का अगर आप रिसर्च करेंगे तालीम करेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या है, बारिश क्या है बताइए। किसमें आएगा, हार में आएगा या गर्म में आएगा, बारिश में आएगा। सर शेक के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि जिसमें खून का बहाव ज्यादा है वो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि सबसे पहले हार्ट में ज्यादा है तो वो हार्ट हो गया, उसके ऊपर नीचे, सबसे नीचे ब्रेन है, बीच में लंग्स है, उसके हिसाब से कर लो। का कांसेप्ट सबसे ज्यादा बात करें तो बॉडी में कौन चीज हार्ट है, सबसे ज्यादा हार्ट किसमें है, रूम में। सबसे ज्यादा गर्म कौन होती है, क्योंकि जो जितना कम होगा वो उतना ही नजदीक होगा। ट्रांसमिशन के लिए उतना ही वो इफेक्टिव रहेगा सर उस चीज के लिए। उसको ये कहते हैं और दूसरी चीज है कि हमारे पास अभी तक ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर मतलब टाइप के जब इंसान को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, हर टेम्परामेंट को कर रहा है, इसलिए ये अभी कंक्लूड नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आशा की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको कल में केवल तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होना चाहिए, नहीं कल बोला मतलब स्पेसिफाई नहीं कर दिया ना, मतलब ये मिजाज को करेगा। मैंने क्या कहा, ये तो डिजीज है, ये हर मिजाज है, मतलब इसको इफेक्ट कर रहा है, ये बात है। दूसरी चीज ये मैंने कहा कि आप ऑर्गन की बात करें, क्योंकि इसका ऑर्गन का जिस ऑर्गन पे बेसिकली रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स की बात करें तो रिसेप्टर्स कहाँ है, आपके लंग्स में। इसका मतलब आपको लंग्स का मिजाज देखना पड़ेगा, तो लंग्स अगर आप कोरिलेट कर रहे हो और अगर हार्ट से भी कोरिलेशन, सर अगर हार्ट से भी आपको कोरिलेट करना है ना, तो जो मॉडर्न फिजियोलॉजी है, रेस्पिरेशन जो है उसमें हार्ट का भी है। हार्ट जब ब्लड पंप करता है या वहां से ऑक्सीजनेशन जाता है लंग्स के थ्रू होके जाता है। तो अगर फिजियोलॉजी प्रॉपर पता है तो इनडायरेक्टली रिलेशन तो लंग्स का भी हार्ट से आ जाएगा ना वहां पे। स्पीकर से क्वेश्चन पूछ लीजिए पैथोजन 44 में स्लाइड में गाड़ी बता दो, स्लाइड नंबर भी याद रखा है। एक चीज है कि स्लाइड नंबर डाल लीजिएगा ना, जकरिया राजी हमारी सीधे स्लाइड इसको मिनिमाइज करें,
2 मिनट लग जाएगा 44 जाएगा। कोई नहीं, 44 स्लाइड में जकरिया राजी ने जो बोला है, अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, बीच में जो है इक्वेटर है, इक्वेटर वहां पे भी फिर अलग से डेफिनेशन, जब हम इक्वेटर के ऊपर की बात करेंगे और नीचे की तो फिर अलग नॉर्थ और साउथ आएगा। नॉर्थ की बेल्ट अगर, तो जब ये नॉर्थ और साउथ की हम बात करते हैं तो क्यों नहीं हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कंसीडर करें? व्हाई शुड वी कंसीडर द इक्वेटर? तो ये उसी के हिसाब से है ना। I have mentioned in the broad context that the northern year is the colder and the southern year is the warmer. ये कंपैरेटिवली है, I have not written anything क्योंकि ये मैंने नहीं, यूनानी अतिबाओं ने यही लिखा है एग्जैक्टली, मैंने चेंज नहीं करा उसमें। इसमें सवाल क्या है? सवाल यही एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे। क्या नॉर्थ और साउथ गर्म और ठंडा होता है ये आपको क्लियर नहीं? नॉर्दर्न एयर अगर मूव करेगी तो वो कोल्डर है, अगर साउदर्न पोल से एयर मूव कर रही है वो तो वो भी कोल्डर होगी ना। कैसे? क्या आप खुद बता देंगे क्यों गर्म है? ध्यान रखिए हाँ वही, उसी को मैंने इंग्लिश में बोला है बस। सिंपल चीज है वाली, आप जानते हैं कि ज्वाएं जो होती हैं जो से पड़ रही है ये आपकी हीट, तो जाहिर सी बात है कि इधर पूरब से निकल के साउथ होते हुए पश्चिम जाना है, तो ये एरिया जो फेस होता है वो ज्यादा गर्म होता है कि जितनी हवाएं गर्म आएगी ये किसी पार्टिकुलर स्पेसिफिक एरियाज के लिए है ना, हर जगह जहां भी कहीं भी आप खड़े वहां से इन जनरल बात होगी। कौन सा फैक्टर इसको इफेक्ट करने वाला बात, आप एसी में बैठे हैं कैसा आसपास कैसा कैसी बिल्डिंग है कैसी हवा में बारिश है ऊपर ना पड़ेगी तभी इन जनरल वो तो सुन रहे हैं ये क्वेश्चन क्लियर नहीं कर पाए नहीं मैं हाँ, म्यूकस कैसे फॉर्म होता है मैं बताती हूँ। जब आ गया समझ में, फ्लूइड कहाँ से आ रहा है, ये म्यूकस फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, किसकी वजह से डेथ हो रहा है? नहीं इसने जो बातें स्लाइड पे जनरेशन होता है इसका मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेन है मेम्ब्रेन डिजेनरेट करते हैं बिकॉज़ ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ द वायरल नोड की वजह से। जब देखो डिजेनरेशन नहीं है, डिजेनरेशन अगर आपको प्लस डिजेनरेट हो जाएगा तो क्या जैसे कि अगर एल्वियोलस है, ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, अगर इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो गया कि ये यहाँ पे इंजरी हो गई, ये तो एल्वियोलस है, एल्वियोलस में सिर्फ एयर होता है, लेकिन इंजरी हो जाएगी तो जितने भी फ्लूइड्स होंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स वो वहां से उसकी एंट्री हो जाती है, तो वहां पे वो पूरा मतलब एडिमा की तरह स्ट्रक्चर हो जाता है। और अगर म्यूकस की बात करते हो, जैसे कि किसी को ड्राई खांसी होती है, किसी को बलगम वाली होती है, वो डिपेंड करता है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स पे। अगर कोई बैक्टीरिया चला गया, अगर कंडक्टिंग सिस्टम तक ही कोई बैक्टीरिया चला गया तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हम खांसते हैं वो बाहर निकल गया, लेकिन अगर उसमें भी नहीं निकला तो हमारी बॉडी की जो इम्यून इम्यून सिस्टम्स है वो वहां से जो है ब्रोंकिडाइटिस, वहां से फिर म्यूकस वगैरह सारे रिलीज होते हैं ताकि वो जो इन्फेक्शन है उस लिक्विड में मिलके बाहर आ जाए। हाँ एक्चुअली क्या है जब साइटोकाइन क्योंकि यहाँ पे साइटोकाइन की वजह से जो सेल दूसरा ये concept है since there is information goblet cells are there and goblet cells produce mucus obviously there are production will be इसमें क्या बोलते हैं पल्मोनरी उसका क्या मैकेनिज्म किस चीज का? पल्मोनरी एडिमा का डेवलपमेंट, उसकी जो स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था, जो स्ट्रक्चर बनाया था उसमें था एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। जब मैक्रोफेजेस उसमें से काफी सारे साइटोकाइंस वगैरह इंटरल्यूकिन्स और ये सब निकलते हैं, वो पल्मोनरी एडिमा एक तरीका हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है।
इम्यून रिस्पॉन्स कह सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू बी प्रिसाइज। वो जो रिस्पॉन्स उसकी मैकेनिज्म, वो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो बताया था एल्वियोलाई पे, एल्वियोलाई है बेसमेंट मेम्ब्रेन है, वहां पे जो टाइप 2 है, टाइप 1, इन सबसे भी सिक्रीशंस होते हैं। और दूसरा, यहाँ तो मैंने बताया कि उसके अंदर एयर है, फ्लूइड फिल नहीं है, लेकिन जिस मेम्ब्रेन से अटैच्ड है वहां पे इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड सारे जा रहे हैं। अब जब डैमेज इस हद तक हो जाए कि एल्वियोलाई का जो बेस है वो अगर एक सैक है, फट जाएगा, अब जो भी चीज बाहर होगी वो अंदर भी जाएगी। अब वहां पे सेल्यूलर फ्लूइड्स हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, जैसे ही वो मेम्ब्रेन सेल रप्चर हुआ, इंजरी हुई, वो सारे के सारे अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो फ्लूइड लेवल बढ़ने लगता है उसमें। एडिमा बेसिकली कभी भी एल्वियोलर का कैपिटलाइज पेट जो लेक्चर हो, कैपिटलाइज पेट लेक्चर हो, उसके जो पैसेज वो भी डैमेज। दैट्स व्हाई जो एल्वियोलर सैक होता है, एल्वियोलर सैक के चारों तरफ सराउंडिंग में एक्यूमुलेशन होता है। इसकी वजह से मेरा एक्सरे आप देखेंगे ग्राउंड ग्लास को किसी भी, और इसी को पल्मोनरी कहा जाता है, क्योंकि वो मस्कुलर लेक्चर होता है। एनीथिंग एल्स? अच्छा, कोई स्टडी है जो सपोर्ट कर रही है कोड मतलब स्टडी वेदर से रिलेटेड होगी सर? ये मतलब सर अगर इम्पैक्ट आप देखेंगे तो नहीं सर, सर ओरिजिन दोनों जगह सर अब इस पे स्टडी है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जो आपने भी कहा है कि जैसे कि जितने भी ज्यादातर जिसमें मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, केसेस ज्यादा है, वो उधर की साइड पे हैं, यूएस और कनाडा और इन सब चीजों पे। वो वेदर कोल्ड है जो है उसमें ज्यादा इम्पैक्ट है। जी सर। इसलिए आपके में नहीं सर, मैंने तो अभी स्टडी अगर जो एज ग्रुप हम देखते हैं उसमें भी इम्पैक्ट देखते हैं, इसका मतलब है कि क्वांटिटी ऑफ उस हिसाब से सर मिजाज का तो नहीं, लेकिन सर जैसे अगर अगर मॉडर्न, अगर बिल्कुल सीवियर केस में अगर देखेंगे तो हिस्टोपैथोलॉजिकली अगर देखा जाए तो सर एज से कोई रिलेशन नहीं है। जो मैंने एक स्टडी देखी है उसमें ये है कि चाहे वो एजेड 60 साल का है कोई, या 50 का है या 20 का है, हिस्टोपैथोलॉजिकली जो बिल्कुल सीवियर, सर ये सब सीवियर के लिए बता रही हूँ, बिल्कुल सीवियर जो थर्ड स्टेज रहता है उसके अंदर जहाँ हाइपोक्सिया वगैरह होता है, उस स्टेज पे जाके जो पैथोलॉजिकली, हिस्टोपैथोलॉजिकली जो चीज चेंजेस हैं वो बच्चे में भी वही है, बूढ़ों में भी वही है, एडल्ट में भी वही है। तो वहां पे तो सर एज का फैक्टर हिस्टोपैथोलॉजिकली नहीं है, क्लिनिकली सर, क्लिनिकली तो सर हो भी सकता है। सर किससे? सर ये सर है, सर इस पे स्टडी है, सर इस पे स्टडी है, उसमें ये इसमें एक स्टडी हुई है सर। सर सेक्स का भी रिलेशन है सर, सेक्स का भी मोर्टेलिटी रेट से रिलेशन है, मेल्स में ज्यादा हो रहा है, मेल्स की मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, और एज का जो रिलेशन है सर 60 प्लस से ज्यादा मोर्टेलिटी रेट है इसके अंदर, ये इस पे स्टडी हुई है सर। जी सर। अभी जो आया है 60 प्लस, लेकिन सेकंड फेज में जो आया है सर, ये मैं आपको सेकंड फेज का बता रही हूँ। सेकंड फेज में 60 प्लस सर डेटा तो यही है सर, से ज्यादा सर सेकेंड फेज का डेटा अभी अक्यूमुलेट प्रॉपर नहीं है, फर्स्ट का तो हमारे पास सब कुछ है, अभी सेकेंड फेज का जो है अभी तो खत्म हुआ है ना सर, तो इससे रिलेटेड रिसर्च नहीं है। सर क्या पैथोलॉजिकली सर? सर जब सर ये जब एल्वियोलाई में सर, एल्वियोलाई में जब जाएगा और टाइप 2 सेल्स को इन्फेक्ट करेगा और वो बर्स्ट कर जाएगा वहां से, तो सर जो साइटोकाइन्स जितने भी रिलीज होंगे, तो वहां से सर जब सेल इंजरी होगी, जब सेल इंजरी एल्वियोलर वॉल पे होगी और वो वॉल डैमेज हो जाएगी, वहां से सर रिवर्सिबिलिटी नहीं होगी, वहां से वापस नहीं आएगा सर। वो अगर वॉल डैमेज हो गई, हाँ सर साइटोकाइन स्टॉर्म की जो बात की थी, यस सर। एक चीज और है जो एयरबोर्न ट्रांसमिशन होता है, जी सर। तो उसके लिए जो
particle size होता है वो कितना तो बेसिकली सर इसका सर पार्टिकल साइज जो है 65-125 नैनोमीटर है। अगर ये डिस्पर्स हो रहा है तो सर ये मिनिमम तो रहेगा ही। वैसे क्या है सर, वो मेरे सर है पर मुझे नहीं पता सर, आप ही बता दीजिए। सर ये है कि सर उसको लाइट होना पड़ेगा, मतलब अगर ले मैन ये तो रेंज बता रहे हैं ना सर, ये तो रेंज बता दी इन्होंने। ये जो रेंज है 5 से कम वाले को क्या बोलेंगे, 5 से ज्यादा। एक्चुअली सर ये जो है ना, ये न्यूमोकोनियोसिस के लिए इन्होंने याद कर, ठीक है। हां वही चीज है, यस साइज ऑफ पार्टिकल इसमें क्लियर करना है। 5 से कम वाले को क्या बोलेंगे, ज्यादा वाले को। यही एक पॉइंट है जिससे अगर ज्यादा होगा तो फिर वो एयरबोर्न ट्रांसमिशन में नहीं आएगा, क्योंकि उससे ज्यादा वाला सस्पेंड नहीं करेगा सर। हां ठीक। उसके लिए जो 5 से ज्यादा होता है ना उसको ड्रॉपलेट बोलते हैं। 5 से नीचे वाला को ड्रॉपलेट नहीं गई, इसको एक सुन दिया फिर ड्रॉपलेट ले ही ना, अदरवाइज वो एयरबोर्न ट्रांसमिशन नहीं कर रहा है। डायरेक्ट आप किसी के सामने अपनी एक्सचेंजिंग से आप डायरेक्ट ट्रांसमिशन करने वाला है। एयरबोर्न ट्रांसमिशन तभी कहलाएगा जब द साइज ऑफ द पार्टिकल। तो सर एयरबोर्न ट्रांसमिशन के लिए कौन सा टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे? ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई ऑब्लिक एरोसोल्स। तो सर जितना भी हम कोरोना वायरस का जो पढ़ रहे हैं हर जगह, तो उसका ट्रांसमिशन वाले सेक्शन में हर जगह लिखा है इट इज ट्रांसमिटेड इन ड्रॉपलेट्स एरोसोल्स, लेकिन ये एयरबोर्न नहीं लिख रहा है तो साइंटिफिकली गलत लिख रहा है। तो हर जगह सर यही है। और अगर ऐसा है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई या एरोसोल, ये सर एरोसोल ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई ये तीनों वर्ड्स लिख रहे हैं, लेकिन अगर ये ऐसा है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो सर अगर ये एयरबोर्न हो गया, ये एयरबोर्न तो नहीं है सर अभी फिलहाल तो नहीं। ट्रांसमिशन जी सर, एयरबोर्न ट्रांसमिशन इज डिफरेंट। But transmission is concerned, it must be less than. Otherwise, it will settle down. आपके साइज होता है नैनोमीटर, वो तो बहुत छोटा है। सर मैंने रिलेशन की उससे कर दिया ना कि वायरस का साइज इतना छोटा है, वो तो जा ही रहा है, तो उतना साइज तो जाएगा, वो पक्का है जी। एक और क्वेश्चन, जब हम ओरोफाइटिंग से लेते हैं सिम्पटम्स जी सर, उसमें एक शर्त होती है कि वो टंग से, गम से, टीथ से टच नहीं करना चाहिए। सर ओरोफैरिंग से तो स्वाब कर लेते हैं सर 2 जगह से लेते हैं, एक तो नेजल स्वाब लेते हैं और एक ओरल वाला। और फर्स्ट इनिशियल स्टेज में नेजल से लेते हैं, और अगर टच नहीं करते सर, टच नहीं करते हाँ, मतलब कि वो बिना टच करे हुए म्यूकस मेम्ब्रेन और टीथ वगैरह के। तो सर अगर या कोई ऐसा एंजाइम होगा जो उसको रिडक्शन देगी, सर ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा। नहीं सर, अगर सर वैसे या तो सर कंटामिनेशन एरर को कम करने के लिए भी हो सकता है कि वो कहीं और से टच ना करें। कुछ माइनस है, क्योंकि हम लोग मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, आंसर है मैं बता रहा हूँ, मैं किसी को एरर वही सर, एक और मोहल्ले लोग गया और दूसरे की तरह गया। कैरियर स्टेज विंडो पीरियड क्या है सर? कैरियर स्टेज ही तो हुआ वो। कैरियर हो सकता है कि वो किसी स्टेज में हो सकता है। वो सर कैरियर सारी सर विंडो में कैसे नहीं होगा सर? विंडो पीरियड में सर विंडो पीरियड में सिर्फ एंटीजन डिटेक्ट नहीं होते, इन्फेक्शन तो रहता है ना। ऐसी जगह है सर ट्रांसमिशन के चांसेस कम होंगे, लेकिन ट्रांसमिशन तो हो सकता है ना सर। अगर डिटेक्ट नहीं होगा तो 2 वजह हो सकती है।
हाँ या फिर दे आर नॉट प्रेजेंट इन दैट एज। हाँ सर, या तो अमाउंट कम होगा उसका, या फिर उस सरफेस तक नहीं पहुंचा है जहाँ पे डिटेक्टेबल रहता है सर। फिर सर उसका भी फिर, अच्छा एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ जिसको, हाँ एक क्वेश्चन मेरा है, जो रिवर्स जो हम इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, एक्सक्यूज मी, जो रिवर्स क्लास आरटीपीसीआर जो हम मेथड यूज करते हैं इसके डायग्नोसिस के लिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, हम उसमें यूज करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन। इसका मतलब ये है कि हम पहले आरएनए को, जो भी वायरस का जो आरएनए है उसे पहले हम डीएनए में कन्वर्ट करें, उसके बाद उसको एम्पलीफाई करें और फिर देखें कि क्या उसका मतलब कौन सा वेरिएंट है, स्ट्रेन है या कितना क्या है। हम आरटी क्यों यूज कर रहे हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो तो वैसे ही एमआरएनए की स्टेज पर है, आरएनए डायरेक्टली ट्रांसलेट हो सकता है प्रोटीन में, उसमें कुछ करने की, आरएनए ऑलवेज दूसरे फॉर्म में रिप्लिकेट हो जाता है, इसलिए एक दूसरे फॉर्म में नहीं कर सकते। आरएनए ऑलवेज चेंजेस इट्स फॉर्म, सो इसलिए उसको डीएनए में कन्वर्ट करके ही हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। फॉर्म चेंज तो तब होगा ना जब वो डबल स्टैंडर्ड बनेगा, पहले वो पहले ही जब सिंगल रहता है तभी हम उसको रिवर्स में चेंज करके डबल बनाते हैं, वो म्यूटेशन की बात हो जाएगी सर, वो तो म्यूटेशन की बात हो जाएगी फिर जो फॉर्म चेंज होगा तो। एक्चुअली सिंगल स्ट्रेन को डायग्नोस करने के लिए अभी नहीं है टेक्नोलॉजी ये होगा सर कि इसको जो है रिवर्स करके डबल बना के उसके बाद इसको चेक करते हैं। उसके जो इसका मतलब है कि सर हमारे पास ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो आरएनए है इसको एनकोड करने के लिए हमारे पास अभी कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। हाँ वही सर, आरएनए को एनकोड करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, एम्पलीफाई करा जाता है सर। ठीक है, निकल आता है तो ठीक है, नहीं तो नेगेटिव। अच्छा लेकिन उसके बावजूद फिर भी 35 का उसको नेगेटिव तो वो जो सीटी बैठ है जितना ज्यादा होगा चांसेस ये अभी तक ये नहीं है, चांसेस है कि इसकी सेवेरिटी कम हो या फिर वायरल बहुत कम हो। सब चला दो तो सबके साथ डिस्कशन करना है, दो दो लोगों के बीच में नहीं। कंक्लूड कर दीजिए सर। सर कंक्लूड कर दीजिए। क्या जब तक रहोगे नहीं सर, डिस्कशन हेल्दी है, मुझे जो चीज नहीं पता है वो भी पता चल रही है, या जो कुछ ऐसा बहुत अच्छा है। अभी डॉक्टर शबाना नूर ने जो है कोविड पर जो है अपना लेक्चर दिया, ये सेमिनार, चूंकि एक प्राइमरी हम लोग इंटरेक्शन के लिए जो इंटरनल सेमिनार इसीलिए करते भी हैं कि करने का मकसद ये हो कि हर आदमी को अपना एक ओरिएंटेशन भी सामने आए, उससे से कैसे कैसे सवालात होते हैं, बाहर जाने के बाद जो है बड़ी परेशानी भी हो जाती है बोलने में। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है जिससे जो हम लोग जो है प्रैक्टिसिंग उसमें जा रहे हैं, एक ट्रेनिंग हो रही है। ये फाइनल नहीं है, बल्कि इसमें बहुत कुछ है, क्या डिफरेंट टाइप के सवाल भी होते हैं, उससे भी अपने आप को जो है फिर रिवाइव करके जो है क्वेश्चन देखो उसको जो है रेक्टिफाइड करके ठीक किया जा सकता है। तो शबाना नूर का जो आज का कोविड-19 था, ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है
और इस वक्त जो है ना हर पैथी के या जो है काफी ये आ रहा है अपने अपने तरीके से, क्योंकि यूनानी में जो है एक ओल्ड लिटरेचर है, उसको रिलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसका, चूंकि बहुत सारी चीजें हम मुतबा में तबीयत और ये सब का खुद ही हम क्लियर कंसेप्ट नहीं कर सके। टेम्परामेंट का आज भी जो है बहुत क्लियर कंसेप्ट नहीं आया है कि इसको किस तरीके से कोई ऐसी किताब या कोई ऐसा जो है यूनानी साइंटिस्ट क्लियर नहीं है। जो पुरानी चीजें उसी में थोड़ा थोड़ा रेक्टिफाइड जैसे जैसे हो रहा है, ज्यादातर को रिलेट हम लोग मॉडर्न मेडिसिन से या मॉडर्न लिटरेचर से, तो इसमें थोड़ा सा परेशानी होती है। तो इनका एक बहुत अच्छा टॉपिक रहा और काफी इसमें हर तरह से कवर करने की कोशिश की है। सबसे अच्छी चीज है कि यूनानी का लिटरेचर मैक्सिमम जो है जो कलेक्ट करके सामने लाया है, हम लोगों को यूनानी से ज्यादा मतलब है को रिलेट करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर मॉडर्न पैथोलॉजी की बात आती है तो उससे जो बढ़ता जाता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जितना ज्यादा आप जो है ना लिटरेचर में या फिर जो है मवाद मैटर आएगा, क्वेश्चन भी ज्यादा होता है। तो इससे ये अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि जो है ये प्रेजेंटेशन बहुत गलत है या सही है, बल्कि जितना क्वेश्चन हो समझिए कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा, उसमें मैटर बहुत ज्यादा। क्वेश्चन होने का मतलब ही ये है कि सारे लोग कॉन्शियसली जो है सुन रहे हैं। अगर ड्राई हो तो फिर कोई सुनता नहीं है और इसीलिए क्वेश्चन नहीं करता। ओरिएंटेशन वाला जो है जो लेक्चर देता है समझता है कि हमारा लेक्चर बहुत अच्छा हुआ, सारे लोग समझ गए और कोई जो है क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन होने का मतलब ही है कि उसके अंदर और डीप स्टडी हो रही है या जो भी मैटर सामने है नया लेटेस्ट आ रहा और सारे लोग अपने अपने तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम इसको हेल्दी मानते हैं, जितना सवाल हो उतना ज्यादा हेल्दी है, उससे जो जवाब तो मिलते ही हैं। खुद ओरिएंटल जो लेक्चर होता है उसके लिए भी एक चैलेंज हो जाता है कि ये जो सवाल हो रहे हैं इसको हम रेक्टिफाइड करके ताकि दूसरे जगह जाए तो हम बिल्कुल क्लियरली जो सवाल का एक अंदेशा होता है क्या क्या सवाल हो सकते हैं उसको हम क्लियर करके और दूसरे जगह इंशाल्लाह जो यहाँ प्रेजेंटेशन है इससे बेटर प्रेजेंटेशन होगा। क्योंकि जितने सवाल हो रहे हैं ये हमको बहुत अच्छा लगा। हम लोग तो ओल्ड आदमी है, सिर्फ सुनते हैं जानते हैं, लेकिन आज के उसमें हमको ये चीज है कि जितने लोग हैं हर आदमी अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश किया और सब जो समझेगा वही सवाल भी करेगा। और सवाल का जरूरी नहीं है कि वो जवाब दे दे, दूसरे लोग भी यहाँ तो हम लोग प्रैक्टिस है जिसके नॉलेज में, जरूरी नहीं है कि कोई टीचर ही दे, बल्कि आपके नॉलेज में भी एक आदमी का सब जवाब जो है दूसरा दे दे ताकि वो हम कंक्लूजन अपने सेट में ले आए। ये सबके लिए हेल्दी है। तो बहरहाल आज का बहुत अच्छा रहा और सेशन भी बहुत अच्छा रहा, काफी डिस्कसिव रहा। तो इस तरह के चीज होनी चाहिए और जो भी लेक्चर है ये घबराए मत कि सवाल होगा, सवाल होगा हम ही लोगों के भी। ये हम लोग मैच फिक्सिंग करके चल रहे हैं कि भाई तुम कुछ बता दो तुम कुछ बता दो, ताकि हम जो है कल दूसरे जगह जाए तो उनको जवाब देने में हमको बहुत आसानी हो और वहां ये लगे कि यहाँ के स्टूडेंट बहुत ही परफेक्ट हैं और हर तरह से तैयारी करते हैं। तो जो भी आपका जो लेक्चर होता है उसको जो लोग भी है उसका बैकग्राउंड में क्वेश्चन भी खुद भी मार्क कर ले। जो भी लेक्चर दे रहा है तो कहाँ कहाँ क्या क्वेश्चन हो सकता है उसको भी थोड़ा सा पहले से ये कर लेना चाहिए और जितना मैटर होगा क्वेश्चन उसमें ज्यादा होगा, क्योंकि ये बहुत ही जो है ना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, पूरा सिंथेसिस और ये ऊपर से लेकर ये करना। पैथोजेनेसिस एक सिंपल की जो है उसका लाइफ साइकिल बता दिया ये होगा, लेकिन काफी अच्छा डीप स्टडी है और इसमें जो है ना और जो भी सवाल हुए हैं लोग से कहेंगे कि इसके जवाब अपने आप में तैयार करके आइंदा के लिए तैयार रहे। थैंक यू। इससे पहले के प्रोग्राम का इख्तिताम हो और मैं डॉक्टर तनवीर साहब को दावत दूं, आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग that you PG scholars are more smarter and more courageous than what I felt when I am the student of PG। आपको मैं बताऊं कि मैं जब PG में पहला प्रेजेंटेशन दे रहा था तो आप यकीन जानिए कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। वेरी फ्रेंकली नहीं, मैं जो देखा हूँ मैं ऑब्जर्व किया हूँ, एटलीस्ट हमने जो ऑब्जर्व किया है एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ। और क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत लोग नहीं दिए हैं, लेकिन उनका सेमिनार अगर डिपार्टमेंटल हुआ है, मैंने वहाँ पे भी ज्वाइन किया है, तो मैं ये कह सकता हूँ
और ये अच्छी बात है कम से कम कि ऐसे लोग आ रहे हैं सिस्टम में और सिस्टम का पार्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं उसके लिए मतलब जो है आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि हर प्रेजेंटेशन जो आ रहा है मतलब एक के बाद देखने को मतलब वो काफी हद तक निखरा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इसी कलमात के साथ मैं डॉक्टर तनवीर साहब को दावत देता हूँ तो फाइनली कंक्लूड करें प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम जी, पूछे आप। अच्छा, हाँ, तो एक वर्ड शबाना ने यूज किया था, वायरॉन करके एक वर्ड यूज हुआ था। अंटिल अनलेस इट गेट इन द बॉडी वो इनएक्टिव रहता है, जैसे बॉडी में गया फिर उसका काम स्टार्ट हो जाता है। अब वो क्यों करता है, बहुत सारी हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज है उस पे। हमारे यहाँ एक बड़ी बात कह देती है, उसको कहते हैं सही माहौल का मिलना। 3 चीजें ट्राइड में पढ़ा होगा ना आपका, एक मौसर होस्ट हो, फिर एक सही वक्त दरकार हो, ठीक है, और उसके बाद इस्तेदाद हो। 3 चीजें। तो वक्त दरकार को कहीं पे आप टाइम पीरियड, कहीं पे माहौल, वेदर, ये सारी चीजें लेती है। तो आपका क्वेश्चन है ना, जो वायरस का है, वायरस की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर वो ह्यूमन बिना होस्ट के वो कभी लाइव फॉर्म में रहता ही नहीं है। अगर यहाँ पे वायरस घूम रहा है, अगर उसे कोई परफेक्टिव होस्ट नहीं मिला तो वो डॉर्मेंट स्टेज में रहेगा। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसा वायरस पड़ा हुआ है जो किसी ह्यूमन से होके भी ट्रांसमिट होके एक्टिवेट होके नहीं आया है, तो उस वायरस से इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। लेकिन जैसे ही वायरस को कोई भी ससेप्टेबल होस्ट मिलता है, चाहे वो ह्यूमन हो या एनिमल हो या बर्ड्स, कोई सा भी हो, जैसे ही वो किसी और की बॉडी में जाता है ना, वहां पे वो एक्टिव स्टेज में आता है और वहां पे वो लाइफ स्टेज होता है जिसे विरियन कहते हैं। और वहां से जब उसका रेप्लिकेशन होता है, वो वाला जो वायरस बाहर निकलेगा बॉडी से, वो विरियन के फॉर्म में होगा, वो इन्फेक्टिव फॉर्म में होगा। तो अगर वो वाला वायरस निकला, जैसे मैंने छींका, अगर वो वायरस है, वो वायरस यहाँ पे है, एक विरियन वाला, इन्फेक्टिव वाला, और एक ऑलरेडी सर्कुलेट कर रहा है। तो जो ऑलरेडी सर्कुलेट कर रहा है उससे कभी इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। लेकिन जो किसी के थ्रू होके बाहर आया है, वो इन्फेक्टिव स्टेज में रहता है, वो आपको इन्फेक्ट करेगा, लेकिन उसका भी ड्यूरेशन है, वो भी कुछ दूर तक या कुछ दिनों तक या कुछ टाइम तक ही एक्टिव रहेगा। अगर उसको दोबारा से कोई एक ससेप्टेबल होस्ट नहीं मिला, वो दोबारा से डॉर्मेंट स्टेज में चला जाएगा। एक सवाल था आपका फॉर्माइट को लेके ना, तो वो तो जो भी हमारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, हम ये बॉटल इस्तेमाल कर रहे हैं, हैंकी इस्तेमाल कर रहे हैं, चेयर्स इस्तेमाल होते हैं। आप पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, देखते हैं ना कुछ लोग स्टेशन पे 1 घंटा से ज्यादा, 2 घंटा हुआ तो ऐसे खोल के सो जाते हैं पूरे बेड पे, कभी मुंह लग गया आपका चेयर्स पे। हर वो जगह जहाँ पे आप दूसरा कोई ऐसा इन्फेक्टेड पर्सन पहुंचा है और उसके बॉडी के डिस्चार्ज, व्हाट आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो भी हो, अगर आपके सलाइवा से फैल रहा है तो वो होना चाहिए मिक्सअप वहाँ पे, तब वो फॉर्माइट फोन आता है, वो सारी चीजें। ठीक है, क्लियर। आज का प्रेजेंटेशन जो है उससे कंसर्न अगर बात मैं करूं तो अच्छा था। इस महीने में लेवल और धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। थोड़ी सी मुश्किल मैंने भी बढ़ा दी थी कि मैंने कैमरा सामने ऑन कर लिया। सो इन दैट केस यू हैव टू प्रिपेयर लाइक दैट। अगली बार से आपके लेवल थोड़े से और ऊंचे होने चाहिए अपने में, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जो होगी ये ऑनलाइन हो जाएगी 1 से 2 दिन के अंदर। इसकी वजह सिर्फ क्या है, ये सेल्फ एलिवेटर होता है। जैसे ही पता चल गया क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आप एकदम लिमिट हो जाओगे चीजों को, जो जानते हो वही बोलोगे, जो जा रहे थे उसको स्किप कर लोगे, या फिर पहले पता चल गया तैयारी अच्छी होगी। लकीली शबाना केस में इसको आज ही पता चला, तो खैर इनको मौका नहीं मिला ये लाइव जाना है। तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट हो वो कहीं के बेस्ट से कंपेरेबल, ठीक है। इस सेंस में आपकी बात पे बाद में आएंगे, इस सेंस में कि हम ओवरऑल स्टाइपेंड मिल रहा हो नहीं मिल रहा हो, हम कैसे आए, वो सारी चीज खत्म हो जाती है। एंड रिजल्ट इज व्हाट इज द होल प्रोडक्ट, आप जो निकल रहा है ना फाइनल क्या है, वो उसी की कड़ी में एक चीज है कि लेवल ऑफ कंपटीशन जैसा भी हो आप उसमें फिट बैठे। कितना अच्छा लगेगा कि कहीं रिक्रूटमेंट हो, हमारे इस बैच से 5-10 एक साथ आ जाए, तो जो फीलिंग हम लोग को होगी, या जो भी टीचर यहाँ एसोसिएट आपसे रहेंगे उसके लिए तैयारी। बस वो अलग बात है कि हम जब पहली बार दे रहे थे तो हम खड़े नहीं हो पाए थे या बैठे रहे थे, उससे और लेवल आगे जाना है। हमको जो मिला जरूरी नहीं कि हम वहीं तक रुक जाए। तो इसके लिए बहुत अच्छा रहा, इसलिए कि इन द सेंस कि आप चीटिंग कहें या फिर
इसको कहते हैं कि एकाएक चीजों को लागू कर देना, उस हिसाब से प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। 2 चीजें मैं इसमें कहना चाहूंगा। एक तो इन्होंने जो कोविड-19 के कंसर्न में जो पैथोफिजियोलॉजी बताई वो बहुत और ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इन सेंस में बताते बताते भी उलझ जाना, तो कंट्रोल वे में इन्होंने वो चीज बताई ताकि हमारी जो शुरू की जो सेल बायोलॉजी है वो भी जिंदा हो जाए, हम भी भूल जाते हैं बहुत सारी चीजें। और इम्यूनिटी का पार्ट इन्होंने कवर किया। आज दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा खर्च इसी पे हो रहा है, चाहे फिर एंड प्रोडक्ट में हम कहेंगे कि वो वैक्सीन बना लेते हैं, लेकिन वैक्सीन वो वही बनाने से इन्होंने एक बात कही थी कि वो जो जहाँ पे अटैच होता है ना, वहां पे हमको अपनी ड्रग एंटर करना है ना, कॉम्पिटेंसी अटैचमेंट का ही तो मामला होता है सेलुलर मेम्ब्रेन पे। तो इस लेवल पे आपने वैक्सीन के तौर पे इंजेक्टेबल दे दिया, कोई ओरल दे सकता है। तो इसलिए आप लोग जो रिसर्च का टॉपिक लें या फिर डिस्कशन करें, इस पे मेहनत कीजिए। कल इस पे क्या रिकॉग्निशन मिल जाएगा आपको पता नहीं, क्योंकि ये बहुत ओपन अप है, इसमें चीजें आ रही हैं, हर दूसरे साल के बाद एक थ्योरी डिस्कार्ड हो जा रही। तो इतना ज्यादा डीप एनालिसिस मॉडर्न का अगर हो गया है हमारे सामने, उसमें हम अपनी चीज इनकलकेट कर देते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। एज शुरू से एकदम लीजिए, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है मिजाज का ही, मिजाज ही को हम समझेंगे तो डिजीज के एतबार से, जो एजेंट है उसके एतबार से, मौसम के एतबार से, जिनको हो रही है बीमारी उनके हिसाब से, ये सारे वैरायटी को हम कंप्राइज करेंगे एक जगह, तो एक अच्छी चीज निकल के आएगी। और दूसरी ये बात और बहुत अच्छा था इस मामले में प्रेजेंटेशन के, ये कॉन्साइज था अपने टॉपिक पे। जनरली होता क्या है कि हमने एक चीज बतानी है कोविड-19, तो एक प्रेजेंटेशन ऐसा भी हो सकता था कि इसमें पूरा इसके साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, और सारा इनकी एपिडेमियोलॉजी बताने शुरू कर देते हैं कि कब कितना क्या हुआ। उसको थोड़ा सा स्किप इसलिए करना है कि आप जो बात बता रहे हैं ना, 10 मिनट बताइए, उसी में बात करें। बहुत ज्यादा चीज ज्यादातर बोर हो जाते हैं लोग, इसलिए कि वो खुद जानते हैं। हो सकता है कि प्रेजेंटर को लगे कि सामने वाला नहीं जानता है, लगना भी चाहिए उस दिन, लेकिन इररिलेवेंट चीज जो होगी ना उसको अलग कर दीजिए। और यूनानी का जो इनका थोड़ा मामला था, उस पर डिस्कशन की बात आगे हो सकती है, जैसे नजला का क्या कॉन्सेप्ट रहा उस पर, फिर 3-4, इसलिए मैंने पूछा था कि रिसर्च कुछ आपने देखा कि नहीं, इसलिए जो 2-3 रिसर्च पेपर आए यूनानी के, उसमें इस चीज का जिक्र हुआ कि इसके मिजाज को कैसे असेस करना है, फिर हमारी दवाएं इसी असेसमेंट के हिसाब पे कैसे रिजल्ट लेके आई। तो वो तो एक डिबेट है, चूंकि हमारे यहाँ रिसर्च एज सच हम लोग नहीं कर पाए, सिर्फ मिनिस्ट्री ने इनिशिएट किया है। वो दवा हो सकता है कोविड-19 खत्म हो जाने के बाद आए, आयुर्वेदा की आ गई, हमारी नहीं आ पाई दवा, वो किस स्टेज में पता नहीं। सो इट वाज वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। और एक बात ये भी कि इस प्रेजेंटेशन में जो काइंड ऑफ क्वेश्चन था वो बहुत हेल्दी इस सेंस में था कि ये सबको सोचने पे मजबूर करे। और अभी भी मुझे लगता है कि कुछ ज्यादातर हिस्सा जो पीजी का है वो क्वेश्चन नहीं कर पा, ठीक है। तो आपको एक बार जब प्रेजेंटेशन पहले कह दिया गया है, 1 वीक पहले इन्होंने अनाउंस कर दिया था, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन किनका है, शायद आपने भी टॉपिक दे ही दिया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग भी उसको पढ़ के आए, ठीक है ना। इसलिए 1-2 ओपन क्वेश्चन मैंने छोड़ा कि वो मेरी नजर में आया, मुझे आंसर नहीं मिला, तो आप लोग उसको इनको करें। तो ये कंटिन्यूस जो प्रोसेस होगा ना, तभी सेमिनार का मतलब ही होता है कि पूरे 1 वीक का जो आपका रिसर्च है उस टॉपिक पे, उसमें एक न्यू लेवल आप लेके आए, आप थॉट्स कुछ छोड़ के जाए उसमें सेंस में। तो इसके लिए बहुत बहुत मैं मुबारकबाद दूंगा डिपार्टमेंट को भी और उनको भी एज ए कैंडिडेट कि आपने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और इसमें इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा रहा। अगर आप कभी आगे कंटिन्यू करें तो मेरा एक सजेशन होगा कि इसी पे सिर्फ यूनानी एस्पेक्ट पे बात करें कि किस तरह से अगर हम इम्यूनिटी बूस्टर दवाएं लगा रहे हैं तो इम्यूनिटी में किस सेल पे इफेक्ट कर रहा है। जैसे एक दवा क्लेम करती है आपके पास त्रिया के वबाई CD4 काउंट को बढ़ाती, क्योंकि ऐसे ही बहुत लंबा प्रेजेंटेशन था, तो हम उसको ढूंढ निकालेंगे कैसे बढ़ाती है और फिर क्या मैकेनिज्म उसका है, या फिर हमारी इम्यूनिटी बूस्टर दवा कहाँ कहाँ इसको असिस्ट कर सकती है या फिर उसको सपोर्ट कर सकती है। सो सबमिशन के बाद भी मुझे बुलाया, इसके लिए शुक्रिया। अच्छा प्रेजेंटेशन था, आप लोग वक्त से साइन कर दिया करें और